Now we will start our program. दीपक पटनायक और भुवनेश्वर। नमस्कार सर, आलोक भट्टागर। सर जी सबको नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। We'll let us start. 50 members have already joined. So I like to welcome all our members who are joined today. And we are expecting more than 50, but we have arrived at 50. Actually, in various groups, we are finding a lot of query among the members. I would like to say, I like to say something about our committee. हाँ नमस्कार। Actually, our team was very effective. We have a members in this legal committee. Apart from the senior fellows of Kanpur, we have members from Bhopal, Delhi, Dehradun, Gurgaon, Jhansi, Jharsuguda, Jaipur, and Sambalpur. So we have taken a lot of feedbacks from all them, and they are all in our team. They had worked hard, and of course, our Anand Singh and Sugata ji were leading this project. So they are done effective work throughout night. Actually, before going to start, we can say before representation, actually we are intended to take the opinion of the values not only of our members but also from the values of other part of the country. So on 28th February we had called one meeting in which around 95 values had joined. Well, not our members from the other part of the country, they are joined about 98. Of course, simultaneously, we are also conducted meetings with our members, and we have come across with three common agenda, because we are also intending to know the common agenda of them. So we have three common agenda. Number one is mandatory inclusion of Indian body laws. अपना माइक जो है म्यूट कर दीजिए एक बार प्लीज। So तीन conclusions we had three as a suggestions. Number one is mandatory inclusion of a grandfathering clause. Second suggestion was no mandatory membership of RVOs, and number three standardization of educational qualifications. So in which the 90 members, the valuers joined us. So out of that, some associations presidents were also with us. They are Federation of Indian Valuers Association, Telangana Valuers Association, Technical Valuers Association, and Karnataka Valuers Associations. So all the four presidents of the association were also there, and in front of them we had finalized this. Of course, we had the meeting had suggested, the members suggested to form one joint action committee in which it has been decided, since I had membership in, we have membership from 19 states. Of course, our strength in southern state is less, but our strength is there, our presence is there. So it has been decided that where we have a number of members in each and states, we will have a three members, and they will nominate three members from their states. But that program did not success, and without waiting for them to come out with the solutions, our team started working, and they formed, they framed out the different, format, representation of the pair, and which was sent to the government through mail, through Twitter account. And as per the suggestions of the council as a legal committee, I had been to Delhi. Of course, I would like to say sorry to them, because since this was my secret mission, even my council members and most of the legal members were not aware that where I am going and where I am coming back and where I am staying and where I am going. So they are not aware about that. Only KK Pad has been knowing, and some of you members were knowing. Anyway, I could not, my Sachin and others had come and received me in Ghaziabad, and we had met O.P. Verma of Delhi here and there. So the one meeting had been proposed, but time was 4:30, but some phone had come that 6 o'clock the meeting will start. But since I had appointment with some concerned officers, I had to refuse for the meeting of the association. Anyway, I think just after that, we had a council meeting. I had observed the discussions. Most of the council members very much happy over the action taken by the IVA.
So as we observe, mandatory inclusion of grandfathering clause, the demand have been accepted by our government of India, which is known to you all. Then number two, RVOs. Actually, we are from the beginning itself we are opposing the RVOs. At present stage, there is no existence of RVOs as far as 34 AB values are concerned. And their standard education qualification, the members are suggested that there should be not MSc valuations in this. But since MSc valuation continuing from 10 years, from last 10 years, and they are getting income they registered, it was practically not possible to get out of that. This was the suggestion of government officer. So during the 3 days, I had met a number of government officers. From them, they had confirmed that 2 points will be tried. But as far as MSc valuation is concerned, since government of India, Ministry of Finance is issuing 34 AB certificates to them from last to 10-15 years. So it is not so easy to get rid of that education collection. Anyway, the council members has reported that they are happy and they had observed, they had accepted 80% success of ours. Next steps also, that for examination is concerned, since in draft bill there is no point of examination, so we did not wrote anything in against draft bill. This came after that. So after that we had represented, and I am sure we are hoping that we will also get successful outcome in this also. So this is why our council member, as also I think most of the members are happy with the working of IVA, and I am on behalf of the association, I would like to congratulate, I would like to welcome, I will thanks all the legal committee members who had worked hard and gave us such a successful result. Now I would like to request Anand Singh and Sugata ji to tell about our future course action, whatever. One thing I will make clear, actually since it is a policy matter, we cannot open our entire stand to you all. Because we work with some secret, this is secret time mission, so they will give what we are going to do and what the planning. But whatever will be done, that will be done in favor of the vendors. Nothing will be against that. We are white triangle level because we are the official office bearers of the association, but we are also our vendors. So this is also depends on the bread and butter of all of us also. So whatever we are working not only for you, but also for us also. So whatever we will do for the benefit of all, not only our members, but also all the entire value fraternity of the India. Now I request Anandji and Sugataji to take over the charge and share something about the facts. Anandji, Sugataji, please. आनंद जी बोले प्लीज। चलो छोटे देखिए ऐसा है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही थी, ये सभी लोग हम लोग जान भी रहे थे कि हमने क्या करना है, और इसमें बहुत बड़ी हेल्प आप लोगों की तरफ से भी हुई कि आप लोगों के बहुत सारे सजेशन आए, तो हमें ये पता चला कि हमें क्या डायरेक्शन लेनी, तो उसके हिसाब से फिर हम लोगों ने चीज़ों को तैयार किया। क्योंकि गवर्नमेंट पोर्टल में कुछ उन्होंने इस तरह से जानकारी मांगी थी कि जिसको इजीली हम एक व्यक्ति के बस में नहीं था कि वो उसको बनाता और उसको प्रोड्यूस कर पाता। तो एक वर्किंग टीम थी जो इन सब चीज़ों पे काम कर रही थी। फिर उसको फाइनली कंपाइल किया गया और सबकी सहमति मिली, और फिर वो आप लोगों को मिला, तो आप लोगों ने उसको सारी बातें सरकार तक पहुँचाई, और सरकार को ठीक लगा कि हम लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था मान लिया। और हम लोग तो चाह रहे थे कि अभी अगर दोबारा से जो क्लैरिफिकेशन आना है, अगर आ जाता तो आज एक अच्छी हम लोगों के बीच में बातचीत होती। लेकिन जब से ये गजट आया है उसके बाद से अभी कुछ भी नया घटित नहीं। अगर कुछ होता तो आज बताने में हम लोगों को अच्छा लगता कि अब ये हो गया, इसके आगे ये हो सकता है। हम लोग भी आप लोगों की तरह ही इंतजार कर रहे हैं कि कुछ नया आए जो हमें क्लैरिफिकेशन दे। और किसी भी सबके मन में तरह तरह के सवाल हो रहे हैं कि अब इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। तो देखिए जहाँ पर आप लोगों की स्थिति है वहीं हम लोगों की भी स्थिति है, क्योंकि आपकी तरह हम भी एक वैलवर ही हैं, तो हम लोगों को भी उतनी ही चिंता है जितनी आप लोगों को चिंता है। कुछ जब तक हमें कुछ नया प्राप्त नहीं होगा तब तक जो सूचना आनी है सरकार की तरफ से आनी है, तो वो आ जाए तो हम आगे की चीज़ें आपके सामने कुछ रख पाएंगे।
बस मेरा इतना ही कहना था। बाकी सुगाता जी के पास कुछ अच्छी उन्हें इंफॉर्मेशन अगर होगी तो वो आपको शेयर करें। सुगाता जी। हाँ, थैंक यू जी। सर, सभी को नमस्कार और गुड इवनिंग। और बिल्कुल दास साहब और आनंद सिंह साहब ने काफ़ी हद तक चीज़ बता दी है। तो मैं थोड़ा सा आगे से शुरू करना चाहूँगा। ऐसे सारे चीज़ आप सब लोगों को पता है, जो लोग आप लोग सोशल मीडिया में AIBA का जो व्हाट्सएप ग्रुप्स रहता है, हमारे जो बनाए हुआ अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स है सारे इंडिया के वेंडर्स के लिए, उसमें जुड़े हुए हैं, उनको काफ़ी हद तक आइडिया होंगे। तभी मैं थोड़ा सा सीक्वेंशियल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूँगा, सो दैट एक चीज़ हमारे सामने क्लियर हो। जो एसोसिएशन ने और सारे इंडिया के वैल्यूअर्स ने, इंक्लूडिंग और भी कुछ एसोसिएशन, इतना मेहनत की इसकी चीज़ को। और जैसे दास साहब ने बताया 80% जो हमारी डिमांड थे, हमारी मतलब 33 के वैल्यूज के डिमांड थे, दैट हैज बीन मिटिगेटेड बाय द गवर्नमेंट। वेल द गोल ऑफ पोटेंशियल, यानी कहीं न कहीं ये बीच में रोड़ा डाला गया, ये एग्जाम वाला है, ठीक है ना, उसमें भी मैं आऊंगा। तो मैं शुरू करते हैं। देखिए, ये सबसे पहले आप सब लोगों को पता होगा, बट थोड़ा सा मैं दोबारा इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। जो एक्ट होता है एक अलग चीज होता है, रूल अलग चीज होता है। एक्ट जो है, ये हम जो बात कर रहे हैं बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट 2025, जो कि अगस्त महीने में 2025 में नोटिफाइड हुआ था। और उस टाइम पे उसकी पहले सिलेक्ट कमेटी बनाया गया था, और सिलेक्ट कमेटी एक ड्राफ्ट जो एक्ट था उनके बारे में उन्होंने सजेशन वगैरह लिए थे। उसके बाद जो गेजेट नोटिफाइड हुआ एक्ट, उसके बाद फिर होमवर्क चालू हुआ, तो उसके बाद रूल की बारी है। रूल क्या होता है? जो एक्ट होता है बेसिकली एक बेसिक फ्रेमवर्क होता है, और रूल होता है उस फ्रेमवर्क को चालू रखने के लिए, डिफरेंट प्रोविजन को क्रियान्वित करने के लिए, हिंदी में जिसको बोलता है फंक्शनल करने के लिए जो मैकेनिज्म है उसको रूल बोलते हैं। तो ये चीज हम समझे, जो एक्ट होता है वो पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, फाइनली ये राष्ट्रपति का साइन होता है, गेजेट नोटिफाइड होता है, तो एक्ट का रूप लेते हैं, एंड दैट बिकम नॉन नेगोशिएबल। यानी एक्ट को हम कोर्ट में चैलेंज भी बहुत ज्यादा कोर्ट भी एंटरटेन नहीं करता, इंटरनल इट इज वेरी समथिंग वेरी सॉलिड लॉजिक देयर है। बट रूल जो बनाया जाता है एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूटिव बोले तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, नुमाइंदा है, या जो पॉलिसी मेकर्स है जो बैठे हैं, उनका कंसल्टेंट्स है, उनका एडवाइजर, उनका द्वारा रूल बनाया जाता है। तो प्रोसेस सेम है। जब रूल बनाया जाता है तो रूल का एक पोर्शन जो होता है, पूरा जो चीज है वो ड्राफ्ट फॉर्म में पब्लिक के पास रखा जाता है, उनका जो कंसल्टेशन के एडवाइस के लिए। तो जब एक्ट आया था, गेजेट नोटिफाइड हुआ था, 514 वाज द बेसिक एक्ट। तो उसके अगेंस्ट में जो चीज हमने अगस्त में देखा 2025 में, तो हम लोग बहुत कंफर्म थे, ठीक है, इट इज ओके, कुछ भी नहीं है, ठीक है, इट इज फाइन, इट इज नॉर्मल, ठीक है। मगर जब इट वाज क्वाइट सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल द वैल्यूअर्स इन इंडिया, जब फरवरी महीने के 7 तारीख का 6-7 तारीख को हमारी ये जो रूल, ड्राफ्ट रूल पब्लिश हुआ, ड्राफ्ट रूल पब्लिश हुआ, और हमने इसको पढ़ा ड्राफ्ट रूल को, तो जिसके अंदर जो वैल्यू से रिलेटेड जो क्लॉजेस थे, जो हमारी, ऐसे तो बहुत सारे वैल्यू रिलेटेड क्लॉजेस थे जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा आपका टाइम लेकर भी। तो इसमें मेन क्लॉजेस जो थे वो सेक्शन थे, ऐसे बोले तो 246, 247, 248, 249। इसके अलावा इन्होंने 2 ड्राफ्ट फॉर्म आज जारी किया था, एक 169 और 170। ये आप लोगों ने कहीं ये सब चीज से गुजर चुके हैं आप लोग, मैं दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ। हमने जब इस ड्राफ्ट रूल को पढ़ा तो हमारे होश उड़ गए, क्योंकि ड्राफ्ट रूल का साथ एक्ट का कोई तालमेल नहीं। जबकि ना बेसिक फंडामेंटल ये होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये होता है जो एक्ट बनेगा, एक्ट के साथ तालमेल रखते हुए हमारे रूल बनेगा, ये बेसिक फंडामेंटल। तो हमने क्या किया, हमने सिलेक्ट कमेटी का सारे रिपोर्ट निकाले, जो कि आप लोगों को शेयर किया गया, ये सब पुराना चीज है, तो मैं जस्ट बता रहा हूँ।
और सिलेक्ट कमेटी का रिपोर्ट का अंदर देखे हमने बहुत सही है, सिलेक्ट कमेटी ने बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल हमारी फेवर में जो होना चाहिए, देश के साथ फेवर में इकोनॉमी के लिए जो होना चाहिए वही उन्होंने सजेस्ट किया था सिलेक्ट कमेटी ने। मगर बाई एनी मीन्स हमको समझ नहीं आया कैसे ये ड्राफ्ट रूल का अंदर ये सब कहानी आ गया, जिसका अंदर एक सबसे बड़ी जो था वो था आरबीओ, यानी आरबीओ उसके अंदर एज ए गेट कीपर अपन बोले तो हमारी और सरकार के बीच में, सीबीडीटी के बीच में एज ए आरबीओ एज ए गेट कीपर, एज ए पॉइंट्समैन खड़ा था। जैसे आपको अगर सीबीडीटी में रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको आरबीओ के थ्रू जाने पड़ेगा, उनका रिकमेंडेशन लेने पड़ेगा। और 7 तारीख के बाद से 7 फरवरी किसी की बातें शुरू हो गई, कई टाइप की बातें शुरू हो गई। आप लोग जैसे बाकी वैल्यू जैसे मैं भी और बाकी लोग भी चुपचाप बैठे हुए थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, बिकॉज इट वाज अ शॉकर फॉर अस। उसके बाद मैं सचमुच थैंक्स टू द विमला जी जो मेरे को फोन किया, पर्सनली फोन किया। विमला जी साउथ के काफी सीनियर मेंबर है, उन्होंने मेरे को फोन करके बोला कि सर ऐसा है, आप एक व्हाट्सएप ग्रुप क्यों नहीं बनाते, क्योंकि एआईबीए का व्हाट्सएप ग्रुप यूज नहीं कर सकते, बिकॉज एआईबीए का व्हाट्सएप ग्रुप में केवल मात्र एआईबीए के मेंबर्स रहेंगे। और यहाँ पर हम हमारी पर्पस का एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट करना जहाँ पर सब लोग जुड़े, सारे इंडिया के वैल्यूअर जुड़े, कोई भी मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी स्टेट और एनी लैंग्वेज। तो इमीडिएटली ऐसे क्रिएट किया गया, इट इज हैव बीन डन बाय 10-11 तक बनाया गया। और सब कुछ आप लोगों ने बहुत ही साथ दिए, मैं सबकी बात कह रहा हूँ, एसोसिएशन ने भी साथ दिए, एआईबीए ने हमको प्लेटफॉर्म दिए इस चीज को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद लोग जुड़ते गए। देन बात आया जो भी अनंत सिंह साहब ने कहा, ये हमने जब ऑब्जेक्शंस हमारे सामने क्या रास्ता था, सबसे पहला रास्ता ये था हमारे सामने कि साहब ऐसा है जो ऑब्जेक्शंस हम रेज कर सकते थे उसको हम पुट करें। तो हमने जब इनकम टैक्स का ऑब्जेक्शन का जो हमने पोर्टल खोला तो हमने देखा ये तो बिल्कुल पजल है, समझ नहीं है कैसे इसको करें। तो एनीवे तीन काम करना शुरू किया और उसके हिसाब से करीब 9 इंक्लोजर्स बनाया गया, 9 वर्ड के इंक्लोजर बनाया गया। जैसे आनंद सिंह साहब ने बनाए थे, जिन्होंने इस पूरा लीगल टीम को हेड किया, ही वाज द लीडर इन लीगल टीम। उन्होंने जो बताया कि एज यूजुअल उस टाइम पे ड्राफ्ट फॉर्म में कोई एग्जाम की बात नहीं है, तो एग्जाम की बात नहीं, तो ऑटोमेटिकली एग्जाम को अपोज करने की कोई बात ही नहीं था, जो चीज था ही नहीं तो हम उसको अपोज कैसे करते। तो जो चीज था उसको हमने अपोज किया, सजेशन दिया, आप लोगों ने पूरा दुनिया से, पूरा इंडिया से, डिफरेंट पोर्शन से जो है वैल्यूअर्स ने उसका पार्टिसिपेट किए। बाकी तो दास साहब ने बताया, बाकी जो मिशन सर जो भी है इसको काफी गोपन विषय से रखा गया, इसको आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा, बिकॉज यू नो हमारी जो एंटी पार्टी है, अब समझ रहे किसी का नाम लेने नहीं चाह रहा, वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग, हमको पैसे की पावर है, उन्होंने इस चीज को सपोर्ट कर सके। ये सबकी इंटरेस्ट के लिए था, हमारी आपकी सबकी इंटरेस्ट के लिए, सारे भारतवर्ष के 34 एबी वैल्यूअर्स के इंटरेस्ट के लिए था, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली जो हम सजेशन 22 तारीख को जमा किया गया, उसकी बात शुरू हुआ, ईमेल कैंपेनिंग शुरू हुआ, ट्विटर पे एंड डिफरेंट फॉर्म में आप लोगों ने मदद किया और आप लोगों ने सरकार के पास चट्टान जैसे हमारे पीछे खड़ा रहे। आप लोग खड़ा रहे, एएनडी के मेंबर खड़े रहे, पूरा भारतवर्ष की 34 एबी वैल्यूअर कम्युनिटी तो खड़े रहे। मेरा 30 साल की करियर में मैं पहली बार देख रहा हूँ सारे लोग एक साथ ऐसे चट्टान जैसा खड़ा, एक साथ एक ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। और मैं सचमुच दास साहब को मैंने थैंक बोलूंगा जब उन्होंने हमको सबको एक काबिल लीडरशिप प्रोवाइड किया। कई टेंस मोमेंट हमारे बीच में, कई मतभेद भी हुआ, कई अलग अलग बातें हुआ, बस दास साहब ने सब चीज को अरेंज किया और एक सक्सेसफुल मिशन के लिए चीज को हमको आगे बढ़ाया। नतीजा ये हुआ जब 20 मार्च को जब बजट नोटिफाइड हुआ तो हमने देखा जो बड़े बड़े जो उपलब्धि थे, पहली बात तो ग्रैंडफादरिंग का हम लोग जानते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा उपलब्धि है 34 एबी वैल्यूअर के लिए, बहुत बड़ा उपलब्धि है सर, बहुत बड़ा उपलब्धि। ये सरकार ने हमको ग्रांट किया, ऑनर किया, साथ साथ ऑनर की एक दूसरी पार्ट ये है जो 10,000 रुपीज का जो प्रोसेसिंग फीस है, 10,000 रुपया हो सकता है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, मगर उस प्रोसेसिंग फीस को जब उन्होंने वेव ऑफ किया, एक रेस्पेक्ट होता है, ये शो करता है, इंडिकेट करता है सरकार हमको कितना रेस्पेक्ट कर रहा है, ये 34 एबी वैल्यूअर को रेस्पेक्ट कर रहा है कि भैया आपको लोग देना नहीं पड़ेगा, बिकॉज
यू हैव बीन ग्रांटेड विद ग्रैंडफादर स्टेटस। तो ये हासिल हुआ। दूसरी जो बड़ी बात था, जो पॉइंट्समैन थे हमारे बीच में, हमारी और सीबीडी के बीच में पॉइंट्समैन कहा था, जिसको रेलवे के भाषा में पॉइंट्समैन बोलते हैं, एक गेटमैन बोलते हैं, जिसका नाम था आरबी, जिसके बारे में आप सब जानते हैं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ इस बारे में, है ना। और वो हट गया। बट जैसे दास साहब ने बताया, इसमें एक सजेशन हमारे तरफ से, तीसरे सजेशन तो थे, जो ये था कि हम लोग एमएससी रियल एस्टेट वैल्यूएशन के एगेंस्ट में नहीं है, ये हम सबको बहुत क्लियर कर दें। हम उसकी एगेंस्ट में हैं जो एमएससी रियल एस्टेट वैल्यूएशन में नॉन टेक्निकल डिग्री होल्डर्स बीकॉम, बीएससी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस टाइप का जो है लोग एमएससी रियल एस्टेट वैल्यूएशन का करके एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूशन मिल रहा है। Those courses are somehow unrecognized। ये इसके खिलाफ हमने लिखे थे। हमने कभी भी एमएससी रियल एस्टेट वैल्यूएशन को हटाने के लिए नहीं कहा। हमने कहा जो एमएससी रियल एस्टेट वैल्यूएशन आप एक्सेप्ट कर रहे हो एज ए क्वालिफिकेशन, दैट मस्ट बी हेल्ड विद अलॉन्ग विद टेक्निकल डिग्री, यानी आपके पास बीई, बीटेक, बीआर्च, टेक्निकल डिग्री होना चाहिए, टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए। ये बात हमने कहा। और दूसरी बात, इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं, सरकार ने इस दाबी को, हमारी ये रिक्वेस्ट को माने नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। उसके मैंने 10 साल में जो बता 80% अचीव हुआ हमारी, वो 20% ये रह गया। तो इसकी मैं अगर सरकार की तरफ से बात करूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा, ये साफ ऐसा है, एमएससी रियल एस्टेट वैल्यूएशन को इस फॉर्म में पहली बार इनकम टैक्स में जोड़ा गया था 1996 में। 1996, 30 साल पहले, 30 इयर्स एगो। और 1997 में मॉडिफिकेशन थोड़ा सा हुआ, उसमें एक्सपीरियंस क्लॉज को हटा के जिसके पास एमएससी रियल एस्टेट वैल्यूएशन है उसको 10 की जगह उसको 3 साल कर दिया, 2 साल कर दिया था उनको एक्सपीरियंस। तो पहली बात ये है, एक 30 साल से एक चीज चल रहा है, कंटिन्यूएशन में है, उसको एक झटका में हटाना बहुत मुश्किल है। मेरे कई सारे साउथ के फ्रेंड्स हैं जिनसे थोड़ा सा मेरा मतभेद हो रहा था, अभी भी है, ये हमने तो एमएससी रियल एस्टेट को कुछ नहीं कर पाए। तो मैं उनको यही बात कहा, सर ऐसा है 30 साल से एमएससी रियल एस्टेट वैल्यूएशन चल रहा है इनकम टैक्स में। एमएससी रियल एस्टेट वैल्यूएशन को इसी फॉर्म में आईबीडीए में भी एक्सेप्ट कर लिया। तो उस टाइम पे तो किसी ने ना कोर्ट में गया इस बार इसके अगेंस्ट में, ना कुछ किए। तो अब तो टाइम लगेगा ना, हम लोग केवल 2 महीना हुआ इस चीज को कहते का। तो ये एक बात है। तो ओवरऑल हम पॉजिटिव चीज की बात करें, जो 80% हासिल हुआ है, वो चीज गुरदास बाबू ने, आनंद सिंह साहब ने कहा, इसके साथ एक मोनम क्वेश्चन आ गया, गले में हड्डी जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो ये आ गया एग्जाम। अब एग्जाम वाला बात जो है ये पहले था नहीं, इट वाज अगेन ए शॉकर फॉर अस, पर एक तो हट गया, दूसरा आ गया। बट ये है, मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम के लिए हम लोग ऑलरेडी कैंपेनिंग चला रहे हैं। आप लोग ग्रुप का मेंबर्स है, जो 30-40 ग्रुप अलग से बनाया गया दोबारा 23 मार्च को, जिसका अंदर सारे इंडिया को जो वैल्यूअर्स है, इंक्लूडिंग एआईबीए को जो वैल्यूअर्स है, वो सब भेज रहे हैं, अपना ऑब्जेक्शन दे रहे हैं। हम लोग भी बैक चैनल में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको समझाने की कोशिश सरकार को कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे दास साहब ने आज व्हाट्सएप ग्रुप में लिखे होंगे, आपने सबने पढ़े होंगे कि कुछ लोग, हमारे बीच में कई लोग, कुछ वैल्यूअर्स अलग जो है डिफरेंट एसोसिएशन का कोर्ट केस की बात करते हैं। कोर्ट केस के बारे में मेरी सुझाव बहुत किया है, जो दास साहब की सोच है वो मेरी सोच है, हमारी सबसे सोच होना चाहिए। वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए, हमने सरकार के पास गए पॉजिटिव मूड, हम सरकार से लड़ने नहीं गए, सरकार हमारी ब्रेड एंड बटर है, सरकार हमको वो दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है। कोई चीज जब कि ना समझा बुझा के ढंग से हो सकता, हम उससे लड़े क्यों करें। तो सरकार ने हमारे सारे बात ऑलमोस्ट मान लिया। वो एक एमएससी रियल एस्टेट वैल्यूएशन के बाद रह गया, दूसरा एग्जाम डाल दिया। अब एग्जाम कैसे डाला, क्या डाला, वो हमको पता नहीं, किसने डाला। कोई सजेशन तो हमने भी दिए थे कि साहब ये होना चाहिए, हो सकता है और किसी ने सजेशन दिया होगा, आई डोंट नो, हमको कुछ नहीं पता कहां से आ गया। बट हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम वाला क्लॉज को हट जाए, एक नया नोटिफिकेशन आ जाए या कोई क्लैरिफिकेशन आए जहां पर एग्जाम वाला क्लॉज हट जाए। क्योंकि हम यही लॉजिक दे रहे हैं, जो 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो कोई आदमी 34 रजिस्ट्रेशन मिला है, उसका एग्जाम का जरूरत ही क्या है, कई बार, ठीक है। तो ये तो बात ये है, तो हम उसको भी लगे हुए हैं। हो सकता है, हम बहुत आशावादी है कि बहुत जल्दी हम आपको एक अच्छी खबर दोबारा सुना पाएंगे, एग्जाम क्लॉज हट गए, हम बहुत आशावादी। बट अगेन इट इज
बाय द रूल्स। ये है मोटा मोटा आज की पूरा ओवरऑल जो बातें हैं। और बाकी अभी दास साहब को मैंने पास कर रहा हूँ इस चीज को। मैं चाहूंगा मेरे को 10 मिनट बाद में आप समय दिया जाए जहां पर मेरे सबकी फायदा के लिए कुछ सैलरी फीचर्स है। आप लोग व्हाट्सएप में बहुत सारे फॉरवर्ड देख रहे हैं, बहुत सारी चीज देख रहे हैं और कंफ्यूज भी हो रहा है, कुछ लोग नहीं भी हो रहा है कंफ्यूज, मगर मैंने लीगल पोजीशन से मैं आप लोगों को सारी चीज क्लैरिटी क्लियर कर दूंगा। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ 34AB नाउ, what is the status of what will be the status of 34AB even if you are registered with 514, and what are the other provisions valuers के लिए और क्या क्या opportunities है न्यू इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल में अदर देन 514 को भी मैं बाद में बात करूंगा। बट फिलहाल मैं आनंद सिंह साहब और दास साहब को पास करूंगा कि आप लोग आगे बढ़ें। थैंक यू सुगता जी। अभी के उपाध्याय हमारे साथ नहीं है, कोई जरूरी काम में व्यस्त इसलिए नहीं आ पाएगा। तो हमारे साथ और एक पार्टनर जो हमारे साथ रात दिन काम किया हुआ, मैं संबलपुर से पानीग्राही जी से अनुरोध करूंगा अगर उनका कुछ बोलना है तो बोले, क्योंकि वो भी हमारा रात को 12 बजे तो वो भी हमारे साथ काम किया। पानीग्राही जी अगर आपको कुछ बोलना हो, संबलपुर से पानीग्राही। इसके बाद हम आएंगे सबके साथ अपना अपना सुझाव देने के लिए। जहाँ तक कोड वाली बातें हैं, देखिए मैं आपको क्लियर कर बताऊं, आएगा 2 कदम आगे बढ़ता हर बार। कहीं कुछ होने से पहले हम अपना कम से इसी बीच में हम लोग कम से 4 काउंसिल मीटिंग करा और 5 से हम लीगल कमेटी करा। और काउंसिल मीटिंग में पिछले महीने जो हम लोग काउंसिल मीटिंग हुई उसे 3 लोगों की टीम बनाई गई कि अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी यूथ का टाइम है, यूथ इन द सेंस नहीं कि वो हम ईरान वाले बता रहे हैं, लेकिन हमारा भी यूथ का टाइम है। हम फिर काउंसिल मीटिंग बुलाएं, फिर आए मीटिंग डिसीजन करें, इसलिए काउंसिल ने एक टीम बना दिया, 3 लोगों की टीम। वो जब चाहे तभी वो कोर्ट को जा सकते हैं, वो ऑथराइज है, वो दे विल रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट। बस इतना काम का तीनों जो टीम है हमको रिपोर्ट प्रेसिडेंट करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अभी हमारा वो नौबत आएगी नहीं, क्योंकि हमारा अभी बातचीत सरकार से चल ही रही है और फाइल पे नजर हमारा लगी हुई है। तो हो सकता है हम सक्सेस हो, तो इस केस में हम सीधे कोर्ट जाना, कुछ लोग ग्रुप में कह रहे हैं, सर मैं सुनने आया कि ग्रुप में कह रहे हैं हम कोर्ट जाएंगे, पैसा चाहिए। देखो हमें पैसा और कोर्ट कोई जरूरत नहीं जाने के लिए। तो अगर मान लो कोर्ट जाना पड़ेगी तो ऑफिशियली आज ए प्रेसिडेंट आपको इंस्ट्रक्शन दे दी जाए कि हम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन उसका नौबत अभी नहीं आएगी। हम ऑलरेडी कोर्ट काउंसिल में ये अप्रूव करके 3 आदमियों को कमेटी बना दिया हूँ। जब जरूरत पड़ेगा रात को 12 को याद होगा कि हमें कोर्ट जाना जरूरी है और कल से कोर्ट जा सकते हो, वो ऑथराइज है। हमें काउंसिल को दोबारा बुलाना कोई जरूरत नहीं है, जस्ट दे विल इन्फॉर्म द प्रेसिडेंट। तो इसलिए हम 2 कदम आगे बढ़े हुए हैं आपके खातिर और देश का दूसरे वैल्यू खातिर। हम अपना जी जान दे लड़ा रहे। और पानीग्राही जी आप अगर हैं तो कुछ बोलना है तो बताइए, क्योंकि आप भी हमारे साथ बड़ी मेहनत की हो। श्रीकांत पानीग्राही जी, आप ग्रुप में अभी हमारे साथ वेबिनार में हो, मैं चाहूंगा थोड़ी आपका चेहरा भी देख ले, क्योंकि आप हमारा भी एक उभरता हुआ सितारा हो, हमारे साथ बहुत बड़ी काम की हो। श्रीकांत पानीग्राही जी, कोई जब कोई तब आएंगे तो अगर और किसी को कुछ कहना हो तो आप आ सकते हैं और बोल सकते हैं अपना सजेशन, क्योंकि आप सबके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति का काम नहीं है। तो इसलिए आपका सबके मत से हम लोग काम करेंगे विथ सब कंस्टेंट। और जिसको जो कहना आप बताइए, आपको खुल के आइए, कोई दिक्कत है बोलिए। मैं थोड़ा सा सबसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि आप लोग जब भी कोई बोलेंगे प्लीज आस्क अस क्वेश्चंस, क्लैरिफिकेशन मत मांगिएगा। उसने क्या कहा, किसने क्या कहा, क्या बोला, उसका हम बता नहीं सकते। आपका मन में कोई सवाल है रिगार्डिंग टैक्स एक्ट या रूल, या आपका कोई सुझाव है, ये प्लीज बताइए। थैंक यू। Sir, myself Virendra Garan from Sonipat. अच्छा बोलिए। सर एक्चुअली सर विश्वास जी ने भी बताया कि आरवी वाला क्लोज है वो हटा दिया गया है, बट अभी जो फॉर्म 6169 है शायद एग्जैक्टली यही होगा। इसमें तो सर क्लियर लिखा हुआ है कि जो एग्जिस्टिंग 34AB के वैल्यूअर्स हैं दे आउट, उसमें ये है सर लाइन कि आर यू रजिस्टर्ड विद आरवीओ, if registered with RVO, address of name and address of RVO। अब से RVO क्लोज हटा कहाँ, जब अगर हम एग्जिस्टिंग 34AB के वैल्यूअर हैं और दोबारा जब हम जाएंगे, जो 30 सितंबर लास्ट डेट है उसकी अप्लाई करने की दोबारा 34AB की,
तो आरवीओ क्लोज तो उसमें लिखा हुआ सर, यू आर मेंबर ऑफ विच आरवीओ। मेरे ख्याल में मैं सुगाता से बजाय मैं इसका जवाब देता हूँ आपको। एक्चुअली जो रूल्स बनी है, जो लॉज है, उसमें आरवीओ हट गई। ये जो फॉर्म बनी थी, ये फॉर्म पहले बना था, तो वो बाय मिस्टेक शायद रह गया होगा, क्योंकि हमारा लॉ डिपार्टमेंट से बड़ी अच्छा सा दोस्ती बात हो रही थी, तो उनका कहना है कि ये चीज़ें क्योंकि लॉ में हट गई तो ये जरूर हट जाएगी, तो जिसके लिए हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो तो पॉइंट हट ही जानी है। थैंक यू। अभी सर उसमें 34 के लिए अप्लाई करें रिवाइज के लिए, अभी नहीं, एक्चुअली अभी ना करिए, एक्चुअली क्योंकि अभी शुक्रवार शनिवार इतवार 3 दिन छुट्टी पड़ गई। अगले नहीं, वन मोर नहीं है। मैं मंडे मंगलवार, क्योंकि कानपुर में प्रिंसिपल सीसीआईटी और सीसीआईटी और सीआईटी सब बैठते हैं, तो मैं प्रिंसिपल सीसीआईटी से अपॉइंटमेंट लेके मैं खुद इनसे मिलके डायरेक्ट उनसे बात करूंगा, हमारी टीम जाएंगे, तो जो आउटपुट होगी मैं फिर बात बता दूंगा। अभी इतना 6 महीने का टाइम है, इसलिए जल्दीबाजी करना कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो हम आप सबके लिए हम लोग भी वैल्यूर है ना, तो जो कुछ करेंगे ये मत सोचो कि जो आगे लीड कर रहा है वो आप पहले कर दे, आपको बाद में ऐसा करना नहीं होगी। मतलब सब आप लोग जो आगे जाओगे पीछे पीछे हम लोग रहेंगे। ये मेरे ख्याल में अगले हफ्ते आपको बाकायदा ऑफिशियली इंस्ट्रक्शन हो जाएगी कि हम टीम बना के जाएंगे अपॉइंट लेके, क्योंकि जो यहाँ का प्रिंसिपल सीसीआईटी है वो कानपुर भी देखती है, वो लेडीज है, और शायद नोएडा या गाजियाबाद कहीं बैठती है, तो इसलिए 3 दिन शायद दिल्ली साइड रहती है, 3 दिन यहाँ रहती है। तो जब रहेगी, पिछली बार हमको मिलने जाना था लेकिन वो थी नहीं, तो हम दिल्ली चले गए। तो अभी टाइम लेके जाएंगे, उनसे हम बाकायदा टीम अपॉइंट लेके जाएंगे इस पर डिसीजन, तो आपको बता देंगे सबको। राइट, थैंक यू। मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड करूंगा। अभी एक चीज बताना चाहूंगा, अभी ये फॉर्म एक्टिवेट हुआ ही नहीं उनकी वेबसाइट पे, तो कोई अप्लाई कैसे कर देगा? मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि हम अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई कर देंगे? ऑनलाइन सबमिट होना है, पहले ऑनलाइन उसको भरने का तो वो खुले है कि आप लोग अप्लाई कर दो। मैं थोड़ा सा इसका लीगल पहलू वीरेंद्र जी को बताना चाहूंगा, बाकी सबको भी इसको थोड़ा सा नोट लिख कीजिएगा और दिमाग में रखिएगा सर। देखिए, लीगल पहलू ये होता है कि हमारी देश की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर एक्ट जो रूल बनते हैं ना, उसका बहुत ही बेसिक एकदम सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। तो ये सीक्वेंस ये है, ये एक्ट जो होता है सबसे ऊपर होता है, ठीक है? एक्ट को ऊपर बेस करके रूल बनता है और रूल को बेस करके डिफरेंट फॉर्म्स ऑपरेटिंग फॉर्म। तो वीरेंद्र जी कह रहे हैं ना कि अभी जो आरबीओ रह गया, आरबीओ नहीं रहा, आरबीओ इज ओवर फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड इट विल नेवर रिटर्न बैक। दूसरी बात क्या है, देखिए दिस इज, जैसे दास साहब ने बताया, दिस इज बाय चांस मिस्टेक रह गया, क्योंकि अभी क्या होगा, अभी सारे प्रोसेस ऑनलाइन होना है, क्योंकि मैं जयपुर सीसीआईटी में मैंने खुद पर्सनली बात किया था और मीटिंग बिल के लिए आए थे डिफरेंट ऑफिसर से, यहाँ पर उन्होंने बताया एक यूटिलिटी होगा ऑनलाइन, एक यूटिलिटी मतलब इंसर्ट शीट होगा जिसको आपको भरने पड़ेगा, जो कि आपका फॉर्म 169 के रूप में दिखेगा। यानी जब आप लॉगिन करेंगे डीएससी देके, डिजिटल सिग्नेचर देके और अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके लॉगिन करेंगे, तो वो चीज अपना सामने आ जाएगा, उसको फॉर्म भरने पड़ेगा। बट आरबीओ इज नॉट देयर, बी श्योर 120%, बिकॉज एक्ट का अंदर आरबीओ नहीं है, कहीं मेंशन नहीं आरबीओ का, जो था नहीं पहले भी। अब रूल जो 246, 247, 240, 249 कहीं भी कुछ भी आरबीओ को जिक्र नहीं है। तो उसके बाद जो ये जो फॉर्म है, उसके फॉर्म का रहना नहीं रहना कोई मतलब ही नहीं रखता। तो सर बोलिए, राजीव द्विवेदी जी कुछ कहना है? राजीव द्विवेदी जी। राजीव तो जी सर बोलिए। मैं राजीव द्विवेदी आगरा से बोल रहा हूँ। सर बोलिए। ये जो एग्जाम का है, ये अभी भी बैकडोर से आरबीओ ट्राई कर रहे हैं। ये एग्जाम का समझौता इसीलिए डाला गया है और वो लोग अभी भी ट्राई कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा। वो किसी न किसी तरीके से घुसना चाहते हैं एग्जाम के बहाने। मेरी आवाज सुनाई दे रही क्या? हाँ हो दिए दे रहे सुनाई दे रहा है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ इसको सर, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, आप निश्चित रहिए आरबीओ नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए नहीं आएगा
क्योंकि सरकार को सही ढंग से बता दिया गया व्हाट इज द पर्पस ऑफ आरबीओ। 10 साल से आरबीओ चल रहा है, आरबीओ कैसे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ये सब कुछ ऑलरेडी उनके पास खबर है। अगर सिर्फ आरबीओ आना ही होता अंदर तो ये एक्ट भी ये रूल में रह जाता, ठीक है ना। तो इट इज जस्ट डेफिनेशन है, तो बाई चांस जैसा कि बताया गया, बाई चांस मिस्टेकली ड्राफ्टिंग करेक्शंस नहीं हो फॉर का अंडर 169 में तो ले गया उस सब एंड व्हिच इज नॉट रियली मैटर। और उनको कोशिश करने दीजिए, कोशिश तो हर लोग करते हैं, कोशिश करना चाहिए, उनको कोशिश करने दीजिए, हम भी कोशिश कर रहे हैं। भगवान जिसके साथ होगा वो जीतेंगे। एक बार फर्स्ट राउंड में हमने तो उनको हरा दिया, गलत मंसूबे थे बीच में गेटमैन बनने का, वो तो हुआ नहीं ना, और आगे भी नहीं होगा। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आप लोग सेफ हैंड में है, एसोसिएशन आपका पूरा ध्यान रखना है और सबकी ध्यान रखना है। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। सर और कुछ कहना है किसको? हाँ मिश्रा जी बोलिए, कि कहना है? अनम्यूट करके बोलिए सर, कोई इशू नहीं है, आप बोलिए, जिसको बोलना है सर बोलिए प्लीज सर। एक्चुअली व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी चीज एंटरटेनमेंट नहीं करी जाएगी, कोई एंटरटेनमेंट करेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो जिसका जो बोलना बोल दीजिए, क्योंकि आमने सामने डिस्कस कर रहे हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप में चीज नहीं चलेगी। और इसे हमें कल एक फोन आया कि साहब भजन पंडा से, अरे मैंने कहा भजन पंडा से क्या मतलब, वो हमारा घर के बगल में, तो उनसे क्या मतलब, तो कुछ ही चीजें सीक्रेट रखने दीजिए आप लोग, क्या हो रहा है नहीं हो रहा, इसको फोन करे पूछना कोई जरूरत नहीं। और कुछ कहना है किसी को? हाँ चिराग सोनी जी बताइए क्या कहना। चिराग सोनी बताओ। नमस्ते सर, आप सभी सीनियर वेटनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया अपनी बात रखने के लिए। मेरी आवाज आ रहा है सर? आ सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपसे बात भी हुई थी मेरी, मैंने 34 AB के लिए अप्लाई किया था और अभी मुझे जस्ट 20 मार्च को लेटर उन्होंने दिया है 34 AB का, और 3 इयर्स की वैलिडिटी दी है सर उन्होंने। अब क्योंकि अपन इनकम टैक्स ड्राफ्ट रूल देख रहे हैं, उसके हिसाब से सभी जो सीनियर्स वेंडर हैं उनको वापस फिर से अप्लाई करना होगा। तो जैसे हमको भी अप्लाई करना होगा, जब नीचे सर ने क्लियर कर ही दिया है कि 3 चीजें हो गई, आरबीओ हटा दिया है, 10,000 फी भी वेवर कर दी है। और देखो अप्लाई तो सबको करना होगा फिर दोबारा, लेकिन वो समय है 6 महीने की। लेकिन ये कि आपको आरबीओ से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे प्लेन अप्लाई करते हैं इसे अप्लाई करेंगे। एक्चुअली उनके सामने मजबूरी है अप्लाई करने का, क्योंकि जो लोग अभी तक एग्जिस्टिंग 34 AB है, और क्या गारंटी वो लोग भी वर्किंग कंडीशन में है, इस दुनिया में है भी नहीं है, इसलिए इनके डाटा जो इनकम टैक्स पर कुछ है नहीं, तो इसलिए अप्लाई तो सभी लोग करेंगे, जितने एग्जिस्टिंग है और नए सभी अप्लाई करेंगे। लेकिन सबको बता दी जाएगी कब अप्लाई करना, क्या करना, सब मालूम हो जाए सबको। जी थोड़ा सा अनम्यूट कर लीजिए। आपको देखी नहीं है तो जी थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कीजिए हमको। थैंक यू सर। सर चिराग जी, मैंने आपको थोड़ा सा अपडेट करना चाहता हूँ। सबसे पहले बात ये है, आपको सर बहुत सारी बधाई हो, आपको 20 तारीख को 34 AB मिल गया। यही तो सही है ना, यही तो कह रहे हैं।
बुक मिला आपको? जी सर। मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, आई नो सम पर्सन जिनको 31 मार्च को मिला है, जी 31 मार्च को भी मिला है। अच्छा, आपको सबकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, स्पेशली दोस्त यंग फ्रेंड्स जिनको अभी भी मिला होगा, साल भर पहले मिला होगा, 6 महीने पहले मिला होगा, वो लोग कोई है, ये आपका सर्कल में है। पहली बात तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में कई सारे बातें चल रहा है, वो चलते रहेगा। आपको क्या है, एक चीज आपको लोग और फेस करना पड़ेगा। मैं स्पेशली इसलिए बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। आप ही बैंक में, हम लोग मेजोरिटी लोग 90% लोग बैंक में काम करते हैं, ठीक है सर। और बैंक में आपको पता है कितना कठोर कॉम्पिटिशन है। हम हमारी वैल्यूएबल बंधु, हम खुद ही हमारे दोस्त दुश्मन है, तो चलता रहता है, कॉम्पिटिशन होते रहता है, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। तो सर अभी क्या है, बैंक वाले थोड़ा बिजी है, गारंटी नहीं, थोड़ा सा जैसे फ्री होंगे तो कुछ लोग उनके पास पहुंचेंगे ये बोलने के लिए, भैया 30 तो खत्म हो गया, 30 खत्म हो गया, ये सिचुएशन आएगा सर, मैं आपको बता देता हूँ, 30 खत्म हो गया। ये देखो सर, नया रूल आ गया, मैं आपको साफ साफ बताता हूँ, ये 34AB पहले भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी खत्म नहीं है, यानी 1 तारीख के बाद भी 34AB लागू है, ठीक है सर। मैं आपको सबकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में एक एक्ट है, पुराना एक्ट है, जिसको बोलता है जनरल प्रोसेस एक्ट, 1897 का एक्ट है, पुराना एक्ट है, दैट इज सेविंग और रिटेल, ठीक है सर। मैं बहुत Absolutely, absolutely. हाँ सर, तो इसमें क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, जब लीगल स्टैंडिंग ऑफ 34AB एंड 514, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। देखिए 34AB रजिस्ट्रेशन एक अलग चीज है, जो कि लाइफ लॉन्ग होता है, या जो नया रजिस्ट्रेशन है उनको 3 साल या 5 साल का रिन्यूअल क्लॉज भी रहता है, ठीक है। और 514 बिल्कुल अलग चीज है, बिल्कुल, क्योंकि 34AB रजिस्ट्रेशन जो मिल रहा है हमको या मिला है, वो अंडर वेल्थ टैक्स एक्ट 1957 के हिसाब से मिला है, ठीक है। एंड ये जो हमको 514 मिलने जा रहा है, जो सब्जेक्ट टू वी अप्लाई इट एंड गॉट इट थ्रू, वो हमको मिलेगा इनकम टैक्स एक्ट 2025 एंड रूल 2026 के हिसाब से। दोनों में कोई लड़ाई नहीं है, दोनों में कोई, जिसके पास 34 रजिस्ट्रेशन है वो 1 तारीख के बाद भी रहेगा, आज से 1 साल बाद भी रहेगा, 2 साल बाद भी रहेगा, अंटिल गवर्नमेंट कोई नया रजिस्ट्रेशन लेकर नहीं आता है, जो कि फिलहाल तो हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। So 34AB is there, will be there, and it is now exist also. So 34AB is बिल्कुल सेफ है, ठीक है। अब बोलते 34AB और 514 का क्या रिश्ता है? 34AB और 514 का रिश्ता ये है, ये 20 तारीख के पहले या मान लीजिए अगस्त की पहले, अगस्त 2025 की पहले इनकम टैक्स का एक्ट के अंदर 1961, 62, 61 एक्ट एंड 62 रूल और 2025 के एक्ट में डिफरेंस ये है, 61 के एक्ट में अलग से वैल्यू रजिस्ट्रेशन नहीं था, it was value registered under wealth tax act, which is different act under Ministry of Finance, and income tax used to draw the panel on the register of that roster actually, उसको चल रहा था। Now for the all tax complaint tax administration purpose, income tax is thinking of having its own panel, own registration, own roster, that is the difference। तो 34 में तो रह जाएगा। Only thing is that हमको as because we are in the system, the existing 34AB valuer still who have got a valid registration till 31st March 2026, उनको एक ग्रैंडफादरिंग दिया गया। तो कई लोगों का दिमाग में ये आया होगा कि ग्रैंडफादरिंग मिल का फायदा क्या होगा? ग्रैंडफादरिंग मिल का फायदा ये हुआ सर, कि आप अगर चीज एक्टिव है और विलिंग है काम करने का, और आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन है, तो आप अप्लाई करते ही अपने आप रजिस्टर हो जाएंगे, नो क्वेश्चन आस्क्ड, दैट इज द डिफरेंस। और अगर चीज बाकी जो फ्रेश एप्लीकेशन होगा, उसकी एप्लीकेशन रिगोरस स्क्रूटिनी होगा, उसकी एप्लीकेशन में सही से सवाल पूछे जाएंगे, यहाँ आपको एक फॉर्म भर के देना है, केवाईसी जमा करना है, और आपको वैलिड 34 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना है, बस यही करना है। बाकी जो फ्रेश एप्लीकेशंस है, जिनके पास ये जो फैसिलिटी नहीं है ग्रैंडफादरिंग का, उनका सारे एप्लीकेशन का रिगोरस स्क्रूटिनी होगा।
होगा, जैसे होता है हम लोगों ने सबने देखा है कैसे शूटिंग होता है। हमने सबका पास 34 एबी है, उसके लिए क्या क्या पापड़ हमको बेलना पड़ा सबको पता है सर, कितना टाइम लगा, क्या क्या प्रोसेस से गुजरने पड़ा सबको पता है सर। वो सब प्रोसेस हमको गुजरने पड़ेगा, अगर हमको गुजरने नहीं पड़ेगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि 1 तारीख के बाद जब रजिस्ट्रेशन होगा, दैट मीन्स आपके पास 34 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जो वो भी वैलिड है, इसलिए आप बैंक में काम कर रहे हैं। अब बैंक क्या पॉलिसी लेगा, चेंज करेगा, वो अलग बात, बट वो सर्टिफिकेट वैलिड है, आपके पास 514 से सर्टिफिकेट वैलिड है। अगर करेगा सीसीआईटी, करेगा सीसीआईटी यस करेगा सीसीआईटी, यस सर मेरा एक सवाल है इसमें। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए 34 एबी एक्ट खत्म कर रहे हैं, तो ये सरफेसिंग में कैसे ले जाएंगे 2002 का जो बनाए हैं? मिर्जा साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ 34 भी खत्म नहीं हो रहा है। हाँ, वही आपका जेन्युइन पॉइंट है ये सर। ये तो मैं तो देखिए, मैं कोई भी बात कह रहा हूँ ना, एसोसिएशन कोई भी बात कह रहे हैं आपको या मेंबर्स को या बाकी वैल्यूअर्स को जो कि मेंबर्स नहीं है, वो बिल्कुल सॉलिड बेस पे बोलेंगे। आप अगचित हो सकते हैं, यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो, आप मेरे से आकर के डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे तो मैं आपको पेपर एंड एवरीथिंग आई कैन प्रोवाइड, आपको अगचित इंटरेस्ट है। बाकी आपको मैं कह सकते हैं या हम लोग जो आपको बता रहे हैं, लीगल टीम जो आपको बता रहे हैं, वो बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बता रहे हैं, कोई भी हेरफेर नहीं, मतलब ये सुन के बोल दिया ऐसे नहीं। सो मैं दोबारा बता रहा हूँ सर, आपके पास 34 एबी रजिस्ट्रेशन जो है वो भी वैलिड रहेगा और 514 के रजिस्ट्रेशन भी वैलिड रहेगा। साथ में मैंने जो बात कहा था पहले कि हमको हमारे पास एक ऑप्शन और है, एडिशनल ऑप्शन, जो कि हम अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। इसके बारे में मैंने कभी पहले बात नहीं किया, क्योंकि वो बात करेंगे तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा सबके लिए, मैंने बात नहीं किया। वो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एक्ट का, ध्यान रखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्ट नॉट रूल। वो है 247। अब बोलेंगे सर व्हाट इज दिस 247? 247 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक क्लॉज है हमारी टैक्स एक्ट 2025 में, जो कि सरकार ने लाया गया, जिसमें हमारे सीजर सर्च एंड सीजर, यानी लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापा मारने जाते हैं, छापा मारते हैं, और जो भी आपका सर्च एंड सीजर है, एक बहुत बड़ी चीज है, आपकी तरीके से सरकार कर ही रहे हैं, टैक्स के लिए और कई सारे हैं, करप्शन रोकने के लिए, कई सारे बातों के लिए चल रहे हैं इसके, तो इसको कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं देके हमें उसका सोशल और इकोनॉमिक एंगल देखिए। हाँ सर, दैट इज आर्टिकल अंडर 6C, जो रेट डालेगा तो वैल्यूअर्स को अपॉइंटमेंट, कुछ कानपुर के वैल्यूअर्स भी अपॉइंट हुए उसमें। मैं कर रहा हूं मानो जी, मैं सुनिए, मैं फिनिश करके दीजिए, आप सही कह रहे हैं। अगर फॉर्म 6C जो है अब चेंज होके 85 हो गया और उसका एक अलग से सेक्शन बनाया गया, उसका नाम है 247। ओके सर, ओके। 247 बोलिए सर। अमेरिका सॉरी टू डिस्टर्ब यू। कोई बात नहीं सर, तो मैं थोड़ा अच्छा बात बताया आपने। फॉर्म 6C पहले था, फॉर्म 6C का सर्च एंड सीजर में 2023 का अगस्त में शुरू हुआ था, सरकार ने शुरू किए थे, पर ग्रोथ स्ट्रक्चर नहीं था वो, तो फॉर्म 6C अब जो है फॉर्म 85 हो गया, ठीक है सर, फॉर्म 85 हो गया, और उस फॉर्म 85 अब खोल के देखेंगे तो फॉर्म 85 के साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लॉजेस है, सेक्शंस है एक्ट का, वो 247 है। 247 का सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 9 के अंदर वैल्यू रजिस्ट्रेशन के बाद कह रहा है, एंड उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो रूल है वो है 149 एंड 150, ठीक है सर। अब उसका फायदा क्या होगा, इसमें ये है, इसमें ये सर ये है, ये जो सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस में सरकार के पास दो ऑप्शंस हैं, या वो 514 में रजिस्टर्ड जो वैल्यूअर है उसका भी सेवाएं ले सकते हैं, अथवा 247, 5 एंड 9 का जो सेक्शन में जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर उनके भी सेवाएं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास दो ऑप्शंस है, हम दोनों जगह अपना रजिस्टर करा सकते हैं, 514 में एंड 247, 5 एंड 9 में। जब हम 247, 5 एंड 9 में रजिस्टर कराएंगे तो हमको फॉर्म 85 यूज करना पड़ेगा, तो जो 34 एबी वाला है ऑटोमेटिकली उनका हो जाएगा, मामूली सा प्रोसेस है उसका, बिकॉज वहाँ पर दो ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, या तो 34 एबी वाला या एबीबीआई वाला, कैटेगरी होल्डर्स है वही अप्लाई कर सकते हैं, तो थर्ड पार्टी अप्लाई नहीं कर सकते, यानी आपकी
पास अगर 34 रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास IDBI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तो अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो 27, 5 और 9 हमारे पास एक नया ऑप्शन है जिसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अदर देन जिसका 5 और का रजिस्ट्रेशन वो भी सर्च एंड सीजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट आई ऑलवेज एडवाइस पर्सनली दैट आप इस सेक्शन के अंदर ही आप एप्लीकेशन डाल के आप अपने रजिस्टर कर लीजिए, ये चीज हुई है। थैंक यू। Good evening, sir. I have one small question. Am I audible, sir? ऐसा बोलिए। Sir, my name is Pramod. I am from Karnataka, specifically in a place like Umri Dharwad. I am a plant and machinery millionaire. Hope I am helpful, sir. Hello, Hey sir, just tell me what you want to say. sir. अभी when the tax act as I understand. Hello. Just to answer what you will say, please. Sir, as I understand, Wealth Tax Act is abolished, and जो भी act है, it is being kept alive only because there is a 34AB registration of valuers in that. Otherwise, that act is abolished. Am I right, sir? Yes. तो सर यू आर वेरी मच रॉन्ग सर, प्रमोद जी यू आर रॉन्ग, बोलिए आगे बोलिए। अच्छा, तो अभी इनकम टैक्स एक्ट में एज आई अंडरस्टैंड इट इज फॉर सर्च एंड सीजर, तो पी एंड प्लांट एंड मशीनरी वालों को तो उधर उतना स्कोप है, नंबर 1। और 30, as you say, if 34AB is getting continued, then when the act is abolished, why only for registration of values this particular act should be alive? I hope I am clear, sir, about my question. मैं आपको जवाब देता हूँ सर, जस्ट कैरिंग इन इंग्लिश एक्चुअली प्रमोद जी, राइट सर प्रमोद जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आई मेंशन Sir, हिंदी इंग्लिश चलेगा, anything. नहीं सब कोई बात है इंग्लिश नो इशू सर। इन द बिगिनिंग आई हैव मेंशनड one specific act which is called General Clauses Act 1897, आप नोट कर लीजिएगा and you just Google it, you will find it, okay sir. General Clause 1897 which is talks about Okay. savings on people, okay sir. So Okay. even if you just apply a common sense, if you apply common sense that Mhm. is saying कोई from that 2015 में अपना ये खत्म हो गया था, एक्चुअली में भी खत्म हो गया। That's what the rumor going on market, you know. That's the matter of that. सर बहुत मतलब आवाज क्लियर नहीं है सर। Still continuing at the cost also. Okay, this all. Distorted. अब आ रहा है प्रमोद जी? नहीं सर, थोड़ा सा माने in between there is some issue is there. It is clear? Yeah, now it is clear, sir. Now it is clear. हाँ, प्रमोद जी, one thing is that I want to make it very clear, first thing first, and what I mentioned that 34AB Act, extra registration of 34AB is still continuing and will be continued after first of, okay? Because that is a different, altogether different issue. Second of all, Okay. that this, I want to clarify and tell you one very thing that is very clear, that this section 34AB, under section 34AB Wealth Tax Act, it was continuing from then also. It is not because there was no registration, that's why income tax was doing it. If you use the common sense, अगर हम common sense लगाते हैं, so if a government decided stop one specific thing, so why government different CCITs are still issuing the 34AB certification to people? जैसे हमारे बीच में एक सज्जन है और जनरल मैनेजर है जिसको 20 तारीख को मिला है, 20 मार्च को मिला, ओके? You know that Okay. any signature put to any government document by any official, they have been done by a lot of deliberations. The file movement upwards, downwards, then it is done.
So the government never does anything which is illegal. सरकार कभी भी इलीगल इस टाइप का काम इलीगल काम कभी नहीं करेगा, सरकार को पता होता है, people know it, है ना? So it is there. And second of all, let us keep it clear, very clear in mind that 34AP registration is on a different vertical. At the very beginning, few months ago, there was a seminar. I was same thing I'm telling you. Now we have got 3 different verticals of valuers. Mind my words. One, Okay. with additional 3480 valuers. 2, the valuers registered under section 514 of Income Tax Act 2025. And third, valuer registered under Companies Act 2017, subsequent 2022. That is IBPA. Sir, 1 minute, sir. Sir, just hold, sir. 1 second. Just hold. See, before this IBC code came in 2016, there was only one registration authority in India for valuers, that was 34AB Wealth Tax. Yes, very much correct. And Wealth Tax Act abolish हुआ somewhere, I think उससे आजू बाजू में हुआ है. If I'm not, I don't remember the year. And as per my knowledge, because there was no, any act where registration of valuers were there. Forget IBC तो तभी था ही नहीं. Just think that there was no other entity where there was a registration of valuers was done. When wealth tax was abolished, still it was kept alive only because there was no other place where valuers were registered. My understanding is right? No, you are wrong. Pramodji, I'm sorry to say that you are wrong. Why? Just Agreed, do one small exercise. देखिए, we are not arguing here. I am just putting one point based on the fact. No, sir, please understand, sir. Sugat, sir. Don't take it otherwise. See, we are not arguing, sir, please understand why I am asking this question. Please try to understand. I am not arguing nor I am defending this one. I want to understand and let the people also understand. When an act is abolished, only 34AP section is alive. Why? Because there was no place where valuer was registered. Now, coming to the point which, see, I want to understand only. See, this is where I have, whatever understanding I have for the last 15 years. अगर मैं 34AB register हुआ 2013 में. And उसके बाद में IPC आया, I am registered there also. Then now income tax has come. See, my simple argument is, अभी next कोई और आएगा. Why, as a valuer, we have to register at 10 different places, sir? My good point is that I am a valuer, then it should be there everywhere. I am a valuer. Why? अभी कल को आएगा सेबी बोलेगा तुम इधर register करो. कल को बोलेंगे RBI वाला उधर register करो. Pramodji, stop you. I am just stopping you because we are not here Yes. to satisfy. I am just वो कैसे हो कि हुआ नहीं हुआ वो. एक्चुअली में जो कंफ्यूजन है कि मैं एक चीज बताता हूँ. खत्म हो गया है, वेल्थ टैक्स खत्म हुआ एक्ट नहीं. हाँ, मैं एक चीज बताता हूँ सर आपको. आप प्रमोद जी, आप एक बार एक छोटा सा होमवर्क कीजिएगा, है ना? होमवर्क कीजिएगा. आप इनकम टैक्स की वेबसाइट में जाइएगा आज. ठीक है सर? ठीक है सर. इनकम टैक्स. दादा जी आपकी आवाज नहीं आ रही. आवाज आ रहा है मेरा सर? आ रहा अब Sugata ji, in the chief, just clarify my understanding. Sugata sir, just clarify my understanding. Wealth tax is abolished, kept alive, 34AB only because there was a registration, yes or no. For my understanding, not to understand your knowledge, for my understanding. नहीं, it is not like that. First of all, you please just measurement बताया था. You please go to the income tax website today. Okay, maybe tomorrow. ठीक है sir. And there is a list of acts under Minister of Finance since 1947. Okay. Okay. मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का अंदर कौन कौन सा एक्ट है, था, सब कुछ है उसमें. there's a list. सर, Okay. you will find, मैं तो महीना भर पहले देखा था, आज पता नहीं क्या है, it may be different, but just go and check it. The Wealth Tax Act के नीचे जो एक्ट repealed, like abolished, तो पहली बात it is a non-technical word, is correct the word as repealed. There is nothing called abolished. Repeal. और जैसे abolished शब्द तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी शब्द हो गया सर, लेकर not right abolished. It is repealed actually. About repealing of it. Okay. है ना सर? ठीक है. So in that list you will find several acts which have been subsequently from time to time has been repealed. Okay sir? It is a list there. Okay. And मैं डेढ़ महीना पहले देखा था, वहाँ पर वेल्थ टैक्स का के नीचे कोई रिपीलिंग का शब्द नहीं लिखा हुआ.
और दूसरी बात ये है, मैं आपको देखिए आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सारे पोजीशन बता रहा हूँ। Agreed, sir. No problem. So see, these all we are understanding each other, sir. End of the day, we are on the same platform. There is nothing written there against that Oil Tax Act 1957. It has been repealed. There are several acts are there जिसका नीचे लिखा हुआ है repealed. अच्छा. Okay, sir. So there is Okay. nothing written there in the bottom of that Oil Tax Act in the income tax website that it has been repealed. Okay, sir. First of Okay, all, okay. second of all, let me clarify you, Pramod ji, that for a government, it may be anybody's government, it is not possible that once a act is repealed, I repeat, once a act is repealed, later on, from the day of repealing, there will be all the sections, subsections, rules associated will be the null and void. It cannot be operated a specific rule or any sub rules or any sections selective way of a repealed act until unless it has been revised by another act. Okay, sir. Second of all, again I repeat you that there is a something called the General Clauses Act 1897, which gives Okay. power to the Constitution that if any act, even if, I repeat, I am not saying that this West tax has been repealed. No, I don't know. आप check कर लीजिए. तो इसमें ये होता है कि even if any act, it may be any act, if repealed, the action taken against the defined provisions of that act before repealing is remain valid throughout the line. जब तक आप जिंदा रहेंगे, जब तक इंडिया रहेगा एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तब तक वो प्रोविजन वो रहेगा. फॉर एग्जांपल Agreed, sir. Sir, I have only one. Sir, I have ये समझ गया सर. एक ही चीज है. If income tax act के अंदर 514 के अंदर अगर मैं रजिस्टर करूँगा, it is normally for search and seizure. No. इसमें हाँ. 247. Not 514. Okay. Right. 247. तो 514 का एप्लीकेबिलिटी कहाँ पर है सर? सर 514 का आज की तारीख में एप्लीकेबिलिटी ये है कि आपका पहली बात तो आप सर्च एंड सीजर में भी कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है. ठीक है सर. Okay. दूसरी बात ये है आपका कैपिटल गेन का जो काम करना है, कैपिटल गेन का हाँ. सारी आपका उसकी सारी काम उसमें आप कर सकते हैं बेसिकली. ठीक है. उसकी बात सेक्शन 513 एक वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो पहले भी था, जिसका अंदर हमने कभी वैल्यूअर्स इसको एक्सप्लोर नहीं किया. ये बहुत बड़े हिडन ट्रेजर है हमारे लिए और मैं सोचता हूं हमारे वैल्यूअर्स को इसको ट्राई करना चाहिए. दैट इज एफएएल्स बाय रजिस्टर्ड वैल्यू. ये पहले भी था 61 के एक्टिविटी था, अभी भी है, बट इसमें हमको स्पेशल पावर दिया गया. क्या करेंगे सर वो? स्पेशल पावर दिया गया इसके अंदर कि अलग से बनाया गया इसके अंदर कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो रहेगा 514 का अंदर वो अपना पर्सनल रेफरेंस दे पाएंगे. यानी आप आपकी क्लाइंट के बिहाफ पे एनी टैक्स कंप्लायंस के मैटर में जहां वैल्यूएशन इन्वॉल्व है, ठीक है, अच्छा, वैल्यूएशन इन्वॉल्व है या वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, आपका क्लाइंट है, उनकी बिहाफ में आप एफआईआर कर सकते हैं. जैसे क्या होता है कोर्ट का कई बार क्या होता है कि आप कोर्ट में आपको जाना नहीं पड़ता है, आपकी बिहाफ से कोर्ट में रिपेयर होता है, व्हिच इज एप्लीकेबल और एक्सेप्टेड बाय द लॉ ऑफ द लैंड. ठीक है ना. ऐसे एक बार क्या इनकम डिपार्टमेंट का आपके पास नोटिस आ गया तो आप ये को दे देते हैं, सीए तक क्लियरेंस करते हैं. ऐसे ही हमारे पास एक पावर आया जो कि पहले भी था, इसको हम और एक्सप्लोर करना चाहिए. 513 जिसके अंदर क्लियरेंस बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर. एक चीज और बता देता हूं, 513 का अंदर पहले ये पावर दूसरा सेक्शन था, 287 का सेक्शन उसको लिए पुराना 61. ठीक है. इसमें this power was vested with 3480 valuers only, but the registered department has got their own children, own kids in the name of 514. So this power now has been vested to only the valuers registered under 514. This all I am telling because in last question what are the हमारे पास options है. Sir, one more thing, sir. As a plant and machinery valuer, I have no capital gains in that, if I am not wrong. तो मेरा plant and machinery में capital gains तो नहीं आता है. नहीं आता. ठीक है. तो मेरा
income tax पे as a P&M valuer, the scope of work is very less. Is it what I should understand? Except the आपने जो नया 513 बताया, let me explore that. But otherwise there is hardly any work for P&M valuer. You are completely wrong. मैं आपको बोलूँगी, मैं बहुत आपका टाइम नहीं लूँगा अपना, क्योंकि बाकी लोग को वेट कर रहा है, क्योंकि हमें डिस्कस करेंगे फिर। वो ये है। नहीं सर, वो लोग P&M रहेंगे ना, कोई ना कोई तो। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ये ऐसा है, लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूअर से ज्यादा काम आपके पास हो, ये मान लीजिए। आप मेरे को फोन कीजिएगा, मेरा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में है, हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक। चलिए, ओके, थैंक यू प्रदीप, थैंक यू सुगात। नाउ संदीप कुमार दुबे कुछ पूछना है। संदीप कुमार दुबे, प्लीज कम। संदीप कुमार दुबे। सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर, ये नए रूल्स में जो 514 के तहत जो एग्जामिनेशन के जो क्लॉज है सर, उसमें नए जो ग्रेड्स आएंगे उनको एग्जाम देना है, या जो पहले 34 भी हैं उनको एग्जाम छूट मिलेगा सर? ये थोड़ा सा डाउट है सर, जो गैजेट में नोटिफिकेशन आया है उसमें क्लियरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। अरुण जी, सॉरी वो बता रहा हूँ। जबरदस्त ट्रैफिक जाम है कानपुर में। अरे भैया, तुम ट्रैफिक जाम बंद रखो, बंद करो अपना माइक। आप आनंद जी बताइए। आनंद जी, वॉइस आ रहा है सर मेरा? मेरा वॉइस आ रहा है सर, नहीं आ रहा? हाँ सर जी, बता क्या कह रहे हो, बताओ सर। अभी आ रहा है सर आवाज क्लियर? हाँ। जी सर, बहुत सर। सर मेरा डाउट ये था सर, जो नया क्लॉज आया है सर 514 इनकम टैक्स एक्ट में, उसमें सर जो गैजेट नोटिफिकेशन आया है उसमें जो एग्जाम का क्लॉज आया है, उसमें सर नए जो फ्रेश एप्लीकेशन आएंगे उनको एग्जाम देना है, या जो पहले 34 भी रजिस्ट्रेशन उनको नहीं देना है? देखो, अभी एग्जाम का कोई बात ही छोड़ो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एग्जाम वाली बात पॉइंट उठाई है उसका ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, तो इसलिए जब आ जाएगी तो इसके बारे में आपको बता दी जाएगी, मतलब सबको बता दी जाएगी। अभी वी डोंट वांट एनी एग्जाम्पल, चाहे ड्रेस हो, जो भी 34 एबी, चाहे कोई भी हो, हम एग्जाम नहीं चाहते। जी सर। जिसका रिफरेंडम गवर्नमेंट ने कर रखे हुए हैं, भाई भगवान ने चाहा तो होता गवर्नमेंट हमारी बात मान जाए, जब मान जाए तो भी सबको बता दी जाएगी। जी सर, ठीक है सर। दूसरी बात ये सर जो बता रहे थे सर अभी विश्वास सर की 34 भी जो हो गया सर, तो अभी नया एप्लीकेशन सर सीसीआईटी में एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं सर। देखिए, अभी जब तक वो डाउनलोड फॉर्म हुई नहीं है तब तक होगा नहीं, मैंने आपसे बता चुका हूँ। अगले हफ्ते, क्योंकि नहीं बोल रहा हूँ सर, आई एम सॉरी सर इसमें इंटरेक्ट करने के लिए, पर फॉर्म 169 तो बात नहीं कर रहा हूँ सर, नया जो है सर 34 भी का एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अभी क्यों? अभी ट्रांजिशन पीरियड है ना, अभी कैसे एक्सेप्ट करें, आप खुद बताओ ना। जो 31 मार्च से पहले हो चुकी, अभी तो किसी को रखेंगे नहीं, और 6 महीने सबको रखनी है, जब तक तो डाउनलोड हो जाएगी तभी होगी। हम अगले हफ्ते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ कानपुर में प्रिंसिपल सीसेट बैठते हैं, हम पूरा टीम जाएगा, उनसे अपॉइंट लेके उनसे डिटेल समझ गया, फिर ग्रुप में डाल दी जाएगी, ऑफिशियल आपको मेल कर दिया सबको। तो इसलिए अभी ना एग्जाम पे कंफ्यूज हो, ना एप्लीकेशन पे, कम 6 महीने टाइम है, आप निश्चित रहो उसके पे। तो सर अपन ये बोलते सर, जैसे अपन अप्लाई करेंगे सर, तो 514 और 34 भी दोनों का अप्लाई कर सकते हैं सर इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन के लिए? हाँ, वो तो करेंगे, लेकिन अभी तो नहीं कर दे, क्योंकि तो साइट ही नहीं खुला अभी। जब कुछ देखो सर, ये 514 तो नहीं खुला सर, 34 अभी तो मेरे ख्याल कोई कुछ तो नहीं, अभी 34 एबी शायद नहीं होगा। जी सर, ठीक है। बाकी जो होगा तो, क्योंकि हम अगले हफ्ते जा रहे हैं, मैं प्रिंसिपल सीसीआईटी से अपॉइंट लेके जो जाएंगे तो उनसे डिटेल समझ के आएगा, पूरा टीम हमारा जा रहा है कानपुर का, तो अपॉइंट लेके जो जाएंगे तो उनसे जो बताएंगे हम। बाकायदा हमारा आनंद सिंह भी रहेगा, क्योंकि हमारा टीम हेड है, सुगाताई तो जयपुर बैठता है, तो जो जाएगा तो खुद ही ऑफिशियली आप सबको बता दी जाएगी, जो भी प्रोग्रेस होगी आप सबको बता दी जाएगी। ठीक है। अभी संजय चोपड़ा जी कुछ कहना? जी, आप तो बता रहे थे आप खुद ही 34 एबी पे दोबारा अप्लाई करेंगे क्या? संजय चोपड़ा जी, ये बताइए। सर, गुड इवनिंग सभी मेंबर्स को नमस्कार। संजय चोपड़ा प्लांटर मिशन की वैल्यूअर गाजियाबाद से बोल रहा हूँ सर। तो अभी जो मैं सुन रहा था सर सभी मेंबर्स का डिस्कशन, so that prevails कि 34 AB will prevail after 30th September also. It will be in active position, sir. Yes sir, Sanjay ji you are right. Sir, I'm a planting mission evaluator. जो भी प्रमोद जी ने बात की, I had a similar queries. So some of the queries have been already answered by you.
and it was privilege listening to you all because आप लोगों ने इतना explore किया थी, मेहनत किया that we can understand by virtue of just listening to your thoughts. Sir, इसमें being a 34 AP value of a planter machinery segment, तो सरफेसी एक्ट में तो वही है सर, बाकी अदर मतलब कैपिटल गेन वगैरह में तो देयर हार्डली वी फाइंड एनी असाइनमेंट एज सच. Will it be जी मुझे एक्चुअली सर जो कॉमन कंफ्यूजन है वो ये है कि 34 एबी से माइग्रेट हो गए शायद 51 कोड में, बट दिस इज द पॉइंट. यही मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, ये जी चलाया जा रहा है और कंफ्यूज हो रहे हैं लोग. देखिए दिस इज नॉट एन अपग्रेडेशन फ्रॉम 34 एबी टू 51 माइंड वेरी क्लियरली. दिस इज नॉट अपग्रेडेशन, अपग्रेडेशन नहीं है ये. जी Technically, there will be 3 clear different articles of valuers now in the entire valuation ecosystem in India. One is a categorization valuer, one is a 514, the third one is the IBPA valuer. And they will all go parallel. All will go parallel basically. As on today, that is the fundamental. And sir, 34 AB as valuers registration, I have a lifetime registration, so that will go on like this only, or it will be periodic? मैं अभी जस्ट 2 दिन पहले मैंने जयपुर सीआईटी में बात किया था. मैं इसको नया है टू और स्टॉप विद देम, है ना. उन्होंने साफ साफ कहा जिनकी कागज में लिखा हुआ है लाइफ टाइम है या कुछ लिखा हुआ रिन्यूअल क्लॉज नहीं है, उनका लाइफ टाइम है. ये जनरल एज पर का वेल्थ टैक्स एक्ट 34 एडी का डिफरेंस सेक्शन के हिसाब से लाइफ टाइम. और दूसरा ये डिफरेंट जो आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है, डिफरेंट टाइम में आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है, तो दिल्ली का जो सीबीडीटी के हेड ऑफिस है वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है इट इज अ लाइफ टाइम. रिन्यूअल क्लॉज इज ऑलवेज देयर. रिन्यूअल इज सब्जेक्ट टू असेसमेंट. Thank you very much, sir. I have some other queries. I can get connected one issue one to you, sir, as you have already said. मिस्टर चंदन घोष कोलकाता से कुछ कहना. चंदन घोष कोलकाता. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. मैं बोलना चाहता हूँ हमारे कलकत्ता आईटी ऑफिस में एक किया इधर बात करने से उन लोगों ने बोला अभी तो पूरा बंद है, तो जब ऑनलाइन में होगा तभी सभी लोग को अप्लाई करनी पड़ेगी. जो एग्जिस्टिंग है, जो भी पुराना है और जो भी नया भी अप्लाई करेगा सब ऑनलाइन में अप्लाई करेंगे. लेकिन आपकी कौन है टोटल वर्किंग 10 साल. थैंक यू. और रंजन नाना साहब भोपाल से है, आप कुछ बोलना है. रंजन नाना. Well, I've got nothing to add to it, and no questions as such. Nothing. Okay, thank you. Thank you. और संजय चोपड़ा और कुछ कहना है क्या? संजय चोपड़ा नहीं सर, मैं जस्ट ऐड कर रहा था जैसे विश्वास साहब ने बोला है पीएनएम वैल्यूअर की मेरी कुछ क्वेरीज होंगी तो मैं सर के साथ या आपके साथ 1:1 कनेक्ट हो सकता हूँ. एक चीज सबको रिक्वेस्ट ये है, एक्चुअली हमारा लीगल टीम बड़ी मेहनत कर रही है, तो ग्रुप में इधर उधर बातें न किया जाए, वो एंटरटेन नहीं करी जाएगी. तो यहाँ तक होगी परसों में बात हो रही थी, ये ग्रुप में कुछ पढ़ा था हो रहा था, उनको डिलीट कर 1 हफ्ते के पनिशमेंट दीजिए. लेकिन हम लोग ऐसा कुछ सोच नहीं रहे, लेकिन क्योंकि ग्रुप का एटमॉस्फेयर स्थिर है तो इधर का बातें उसका ग्रुप में पूछ लो. उसमें क्या भी जो लोग रात को मालूम है, ये लोग रात को 12 जो काम करते हैं, मैं 12 इनको जाके फोन पे पूछता हूँ मेरा क्या प्रोग्रेस है. तो कोई ये थोड़ी मतलब, तो इसलिए जो काम 12 तो रात को जब के करता हो, सुबह 7 बजे लग जाता है, उसको ये चीजें छोटी मोटी चीजें थोड़ा अच्छा नहीं लगता. बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है. एग्री सर. ओके, सर मेरा एक सवाल है. जी सर. चंद्र जी. हाँ जी, बोलिए. हाँ सर, मेरा ये कहना था कि टेक्निकल और लीगल पॉइंट ये है कि जब आप लोग सीआईटी से भी मिले हैं तो उनसे पूछिएगा जैसे कि इलाहाबाद वाला जो मैटर है उसमें किसी का नाम ही नहीं आया लिस्ट में, सब रजिस्टर्ड हैं, काम भी कर रहे हैं लोग. तो जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात अपना लेटर ही उस पर वो करेंगे, तो उसके भी सिलसिले में एक क्वेरी कर लीजिएगा आप लोग. ठीक है.
की लिस्ट ही नहीं है कहीं। हेलो हाँ जी, हाँ जी, दासा myself Virender Galan. जी सर जी। Sir, actually, as such, we are registered under 34 ED, but not as of now, as if now under 514. तो क्या जो हमारी रिपोर्ट बनेगी वो हमें कंटिन्यू 514 का जो नया फॉर्मेट आया उसी में रखें, पुराने वाले में रखें रिपोर्ट, कैपिटल गेन रिपोर्ट्स। अभी तो फॉर्मूट डाउनलोड है। सुभाष जी आपको क्या कहना, आनंद क्या कहना होता? फॉर्मेट तो आ चुका है इसका। अभी एक्चुअली कि ना अभी ये चीजें कोई क्यों ट्रांजिशन पीरियड में अभी जो अथॉरिटी उनको खुद को नहीं पता क्या होना नहीं होना, तो इसलिए ये बारे में हम जो है ना अगले हफ्ते या बता पाएंगे, जो हम प्रिंसिपल सीसीआईटी को मिल लेंगे तो अभी बता पाएंगे। वो तो सही है, क्योंकि अभी तो कंफ्यूज, जैसे हम लोग कंफ्यूज है वैसे प्रिंसिपल ऑफिस में वो कंफ्यूज है। तो मैंने कहा अगले हफ्ते तक कुछ ना कुछ जानकारी हो जाएगी तो हम जाके मिल के ताकि तो सबको बता देंगे। अभी जैसे पुराना चलने दीजिए जब तक ऑफिसर कोई नहीं कर रहा था पुराने वाले फॉर्मेट में। हाँ करिए। जी मैंने आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। राइट सर, राइट प्लीज। मैं थोड़ा सा पीछे से शुरू करता हूं दोबारा। मैं आपको एक चीज सबको क्लियर करना चाहता हूं, मेरे को दोबारा बता रहा हूं, वही डाटा से बता रहा हूं। देखिए 2025 का जो इनकम टैक्स एक्ट है और इसकी पहले जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 थे और उसकी भी कई सारे हंड्रेड्स ऑफ कंडीशंस हुए थे, मतलब चेंजेस हुए थे, अमेंडमेंट आए थे। तो प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ, जो आपने मैंने ग्रुप में शेयर किया था, जो जय पांडा साहब जो थे उनका एक इंटरव्यू शेयर किया ग्रुप में एक मेरे ख्याल से पिछले महीना, और बाकी जो डिफरेंट जो आप सोशल मीडिया पर आप देखेंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़ेंगे, उसके अंदर ये है कि कंटिन्यूएशन इज देयर। मतलब सिंपल बात यह है, ये जो आप अगर देखेंगे 1961 के एक्ट और 2025 के एक्ट में बेसिक फर्क ये है कि इसको स्मार्ट बनाया गया और कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है ये चीज मेंटेन किया गया। आप पूछेगा मेरे को क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ जब तक हमारे पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आए, इनकम टैक्स कोई एसओपी प्रोवाइड नहीं करे, मेरा सुझाव ये है आप अगर कोई कैपिटल गेन के काम कर रहा है तो पुराना रूल के हिसाब से पुराना हिसाब से चले, so that will continue the continuation. Yeah. Sir, one more question. Hello. Sir, there is one more act recently I have seen, Black Money Act. उसमें भी वैल्यूअर्स का एम्पैनलमेंट आया था। When you meet CCIT, kindly ask वो भी इनकम टैक्स 514 में करेंगे तो उसमें आ जाते हैं कि सेपरेटली वी हैव टू रजिस्टर। ब्लैक मनी एक्ट एम्पैनलमेंट के लिए उसमें भी पोजीशन है। ब्लैक मनी एक्ट ठीक है, वो नोट इट। ब्लैक मनी का एक्ट आया कब था? तो वो हम लोग जाएंगे तो पूछ लेंगे ना। I know one person getting registered recently. अच्छा, ब्लैक मनी एक्ट का आया कब था ये तो बताइए। आया है, ऑलरेडी है वो। नहीं, कब आया? अभी सर आई थिंक आई एम नॉट लर्नड इन दैट, बट आई इसीलिए आई जस्ट थॉट वो भी एक क्वेश्चन पूछूं नहीं, तो करके। पहले आप उसको देख लीजिए कि जब वो आया था तो उसके साथ क्या सर्कुलर जारी हुआ। I have only seen one. I share it. I'll remove the name and share. I फोटो में मैं लेके आया उनसे, तो वो मैं शेयर करता हूँ। उसके ऊपर भी जब when you meet the CCIT, kindly ask about that also. yes I after meeting them na I will report it to you. Yes sir, yes sir. You just contact us after Wednesday. दास सर आप म्यूट हैं, दास सर म्यूट हैं आप। हाँ जी, ओके, थैंक यू। अच्छा अरुण जी आप कुछ कहो। मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं, सुभाष जी ने सभी को बिल्कुल पूरी तरह से सेटिस्फाई कर दिया है। इट हैज बीन ए वेरी नाइस मीटिंग, बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। दे हैव ऑल बीन सक्सेसफुली एंड सैटिस्फैक्टरीली क्लैरिफाइड बाय आवर सुगाता सर जी एंड आनंद सिंह जी। सो इट्स वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। तो और कुछ पॉइंट है? देखिए पॉइंट ये है कि जब भी कोई नया रूल बनेगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, तो हम सब किसी भी एज ग्रुप में हो उसको आपको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। जैसे तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं,
लोगों को उसके पीछे नहीं सोचना चाहिए कि अरे छोड़ो अभी क्या करना है। हो सकता है कि कुछ ऐसे जैसे अभी किसी ने बोला कि अभी कुछ और आएगा फिर कुछ और आएगा, हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। चीज़ें बदलती है, चीज़ें बदलती जाएंगी, नए नए अमेंडमेंट्स आएंगे, हमें उनको पढ़ना भी है, उन पर टाइम भी देना चाहिए। और मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात बताना चाहूँगा कि हम में से बहुत सारे लोगों ने मतलब सभी लोग जो 34 ए बी वैल्यूअर बने, लेकिन बहुत कम लोगों ने वेल्थ टैक्स एक्ट को पढ़ा और वेल्थ टैक्स के एक्ट को कैसे उसके अंदर कोई चीज़ें होती हैं उसको भी पढ़ा। उसकी किताब ही नहीं होगी। अगर आप लोग अपनी लाइब्रेरी में देखेंगे तो बहुत कम लोगों के पास वेल्थ टैक्स एक्ट की किताब होगी। तो हम उस एक्ट में प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट भी लिए हुए हैं, लेकिन किताब किसी के पास नहीं। तो इस तरह की लापरवाहियाँ आगे ना हो। आप अभी जब इस इनकम टैक्स एक्ट में जा रहे हैं, इसकी बुक्स रखिए, उसके जो भी नए नए लिटरेचर आते जाए उनको पढ़ते रहिए। आइबा अपनी तरफ से सेमिनार करेगा तो आधे घंटे में कितना ही बता देगा। तो उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, उसमें कैसे कैलकुलेशन करनी है, किस चीज़ को कंसीडर करना है, किसको छोड़ देना है। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए है आगे के लिए। आप जिस भी फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हो, आर्किटेक्चर फील्ड में हो, सिविल इंजीनियरिंग में हो, स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में हो, उसमें जो भी अपडेशन आ रहा है, जो भी एडवांसमेंट हो रहा है, हमको उससे अवेयरनेस मतलब रहनी चाहिए, अपडेट रहना चाहिए। तब हमारे मन में इतने सारे सवाल नहीं होंगे। अगर हम में से जितने लोग सवाल पूछ रहे हैं, अगर उन्होंने इन चीज़ों को एक बार भी पढ़ा होता तो वो सवाल नहीं पूछते। आप ये देखिए 34 AB में वैल्यूअर आपको डिग्री लेने के अगले दिन नहीं बनाते, 10 साल बाद बनाते हैं। इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा ना। उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है कि पिछले 10 साल में आपने तमाम सारे भारत के नियम, कायदे, कानून, लॉ सब पढ़ लिए हों और इसकी प्रैक्टिस कर ली हो। अब इस स्टेज में आके कोई एकदम बच्चों जैसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो ये आप अपने ऊपर सोचिए। ये सब ठीक नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछना। नो, इस तरह के देखिए सवाल वही पूछिए जो, अगर आपने उस तरह की प्रैक्टिस में नहीं है, इसका मतलब आप 34 AB की चीज़ों को नहीं पढ़ा है, उसके बुक्स नहीं रखते हैं, उसके बारे में नहीं जानते हैं। अगर वो सब जानते तो आज इस तरह के छोटे छोटे सवाल नहीं किए जाते। और जब हम लोग अपनी लीगल ड्राफ्टिंग कर रहे थे तो आज जो लोग सवाल कर रहे हैं उनमें से किसी का भी इनपुट नहीं आ रहा था, कोई एक लाइन लिख के नहीं भेज रहा था, कोई हमें कुछ भी बताने को लिए तैयार नहीं था। तो व्हाई दिस मीटिंग इज डन सर टुडे? क्या हुआ ये मीटिंग क्यों हो रही है पर ये? ओके, थैंक्स आनंद। और किसी को कुछ कहना हो? और कोई सजेशन प्लीज? देखिए आनंद सिंह जी जो बात किया उसकी कंटिन्यूएशन में बता रहा हूँ मैं। सर आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, या अभी हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो एग्जाम हटाने के लिए। तो एग्जाम हटाने के लिए कैसे क्या कर सकते हैं उसके बारे में कुछ सुझाव हो तो हम बिल्कुल आपके लिए आभारी रहेंगे। एग्जाम को हटाने के लिए क्या क्या काम कर सकते, कैसे क्या कर सकते, कोई ने आइडिया दे पाए, वही चीज आनंद सिंह आपकी बता रहे थे। जो उस टाइम जो काम कर रहे थे तो ये नहीं हो पाया, उसी बात की वो अपने ले रहे थे काम भैया में हार्ड वेरी हार्ड चाहिए। तो आप हमको प्लीज बताएं कि इनकम टैक्स एक्ट का और रूल का अंदर एग्जाम का जो उन्होंने चीज डाल दिया थोड़ा, उसको हटाने के लिए क्या सुझाव आ सकता है? आपका तो सुझाव क्या है? एसोसिएशन कैसे आगे बढ़े किस मुद्दे पे, ये बताइए। कोई सजेशन, कुछ भी सजेशन हो सकती है। बोलिए वीरेंद्र जी, आप हैंड अप किया, बोलिए सर, बताइए। सर एक्चुअली ना एग्जाम का तो देखिए हम फाइट कर ही रहे हैं, सारा एग्जाम तो हो गया, क्या होगा फर्दर इन फ्यूचर क्या कह सकते हैं, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। बट एटलीस्ट जो आपने ग्रैंड फादरिंग वाला क्लोज या जो भी आपने ट्राई किया है, एटलीस्ट जो पुराने एग्जिस्टिंग वैल्यूअर्स हैं या जिनका रजिस्ट्रेशन 5 साल पहले 10 साल पहले हुआ है,
कुछ तो होना चाहिए उसमें। सर ऐसा तो सिविल सर्वेंट है जैसे, क्या वो एग्जाम देते हैं कैसे बाद में? आप मान लो 10 साल हमारे इतने सीनियर प्रेसिडेंट आदमी बैठे हैं, इस एज में कोई कहेगा कि एग्जाम दो आप आगे, तो क्या ये थोड़ी ऐसे? वीरेंद्र जी, मैंने यही बातें हम जब बात कर रहे थे 2 दिन पहले सीसीआई की जयपुर वाले ऑफिसर बात करने के लिए, और बड़ा ऑफिसर थे, हमने कई फोन में मिला है अपने सीनियर एंड जूनियर को मेरे क्वेरीज का निपटारा करने के लिए। वो हंसे इस बात को जो आप बोलते थे, बोले यार सर आप इस उम्र में क्या एग्जाम दोगे? आई एम 57, मैं आपको बता देता हूँ, माई एज इज 57। हमसे भी कई सारे सीनियर वैल्यूअर्स हमारे ग्रुप में है या इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में है, जो कि मैं डे टू डे बेसिस पे इंटरेक्ट करता हूँ। एवरीबॉडी इज रियली टेंस, नॉट बिकॉज जी हम लोग तो कई लोग सोचते हैं यार एग्जाम देने में डरते हैं। एक्चुअली क्या होता है, हम कोई एग्जाम देने में डरते नहीं है। कुछ दिन पहले मेरा बीपी सिंह साहब से बात हो रहा था, उसमें उनके एक बात कहा मैंने, बोले सर इस एज हम ऐसे सभी, मैंने एक सर्वे कराया था हमारे ग्रुप के अंदर, तो उसमें देखा था रफली 70% जो वैल्यूअर्स है, छोटा सा सैंपल सर्वे था, उसमें 70% वैल्यूअर्स है अबव 50, 70% एवरेज। अब 50 साल के ऊपर क्या कोई वैल्यूअर्स है तो मतलब जिंदगी बहुत देखा है उन्होंने, 50 साल कम नहीं होता है सर आपके टाइम। तो 50 साल की उम्र की बात ऐसे नहीं कि वो जिंदगी में डेली एग्जाम दे रहा है, हर असाइनमेंट उनके लिए एग्जाम है। दूसरी बात, सरकार को हम यही समझाने की कोशिश कर रहा है, ये एग्जाम जो होता है एक स्टैटिक चीज होता है। एग्जाम इज अ स्टैटिक थिंग, आपने आज पास कर लिया हो गया। अगर जो नॉलेज अपग्रेडेशन सेमिनार्स है, वेबिनार्स है, या जो भी अपना डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में या ऑनलाइन फॉर्म में जो आपने कैपेसिटी, दैट इज ए डायनामिक इन नेचर। हम सब इसको समझते हैं एज ए वैल्यू, ये लोग एवोल्यूशन करता है तो वैल्यू इज ए डायनामिक इन नेचर, चेंज होता रहता है। तो हम यही बात सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप एग्जाम की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपके सोच बहुत अच्छा है, एग्जाम लीजिए। बट सर हमारी सबमिशन ये है, एग्जाम की बदले में एक स्टैटिक चीज को क्यों अपना रहे हैं? आज मैं 60 नंबर ले लिया और एग्जाम पास हो गया, मतलब थोड़ी कि कल नया टेक्नोलॉजी आ गया और मैं बिल्कुल उससे बेहतर ये है, सब्स्टिट्यूशन ये है, आप ऐसे कुछ कानून डालिए जिसमें हम रेगुलर पढ़ाई लिखाई करते हैं, रेगुलर प्रोसेस चालू रहे। यही हम हमारी पॉइंट है जो आपने नीता सिन्हा एक्चुअली अपने अपडेट कीजिए। राइट सर, वो ठीक है। एक्चुअली क्या जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, लीगल लॉयर्स है, जैसे लॉयर्स का जैसे मुझे थोड़ा बहुत पता है, 2013, 14, 15 के बाद से उन्होंने कोई एग्जाम शायद कंपलसरी किया अपने ऑल मेंबर्स के लिए जो बार काउंसिल के मेंबर्स हैं, बट दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दैट ईयर। 2013, 14 के पहले से अगर कोई मेंबर है उसको जरूरत नहीं है, जो बाद में न्यू रजिस्ट्रेशन हुआ है उसको एग्जाम देना बार काउंसिल बीसीआई का। तो एटलीस्ट ऐसा तो हो कि भाई जो बंदा इतना पुराना बैठा है, इतने दिन से काम कर रहा है, अब 60 साल की उम्र में एक बात बताइए आप, कोई डॉक्टर है, कोई आई का है, कोई ईयर का है, कोई हार्ट का है, कोई कैंसर का है, अब सब डॉक्टर्स को आप ये कह दो आज को एग्जाम देना है एक सबको, तो स्पेशलिस्ट हो सके इस एज में वो और एग्जाम तो नहीं दे पाएंगे ना। देखिए वीरेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूँ एक चीज, इस मामले में हमारा गवर्नमेंट ऑफिसर से दिल्ली में बहुत बात हुई लोगों से, तो उन्हीं का ऑफिसर उन्हीं का इस सरकार का नियम को किसी खिलाफ बोल रहे। उनका कहना है कि हम लोग सरकार नौकरी कर रहे हैं, हम 50 साल 55 साल हो गए, क्या गवर्नमेंट हमारा एग्जाम देती है क्या? भाई हमारा एक्सपीरियंस काम, तो हमारा वो एग्जाम फैसले नहीं पड़ती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं गलती चूक सरकार से हुई है, वो कहीं ना कहीं उसको ठीक करने की कोशिश करेगी। मेरा कम से कम 8-10 लोगों से जो मतलब सीबीडीटी का जो सीनियर ऑफिसर है उनसे सबसे बात हुई, सबका ही कहना था, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी चूक हुई, चाहे किसी को ऐसा आया जो ड्राफ्ट रूल पे था नहीं, फिर आ गया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुई है। तो उसके लिए हम लोग अपने से मतलब अपना सजेशन दिए हुए हैं, तो सरकार ऑफिसर बात भी चल रही है, तो उसको कुछ ना कुछ तो उसके एक्शन ली जाएगी, तो इसलिए तो कोशिश में लगे हम लोग। जब आपको आरबीओ हट गया, ग्रैंडफादरिंग क्लॉज हो गया, इतने साल हो गया, तो ये भी उम्मीद करती है ये भी हो जाएगी। नीता सिन्हा जी कुछ कहना है, नीता सिन्हा जी लखनऊ से। नमस्कार सभी को। और मैं भी सिर्फ सजेशंस जो अभी जैसा कि सुब्रता सर ने बोला, बस मैं भी उसी पॉइंट पे ही बोलने के उसमें हूँ कि अगर कोई किसी के पास में सजेशन
तो आई थिंक सभी एक ही बात सब लोग बोल रहे हैं, मैं भी वही बोल रही हूँ कि एग्ज़ाम इज़ द बेसिक क्वालिफिकेशन। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने का एग्ज़ाम बेसिक क्वालिफिकेशन कहलाता है। उसको इसे इसमें इम्प्लीमेंट करना समथिंग लाइक इंसर्टिंग द रेपुटेड वैल्यूज। तो ये मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी रखा जा सकता है। और एग्ज़ाम किसी कैलिबर के लिए बेस बने ऐसा तो मुझे नहीं लगता। एग्ज़ाम एक बेसिक वो होता है, कैलिबर तो हम एक्सपीरियंस से ही गेन करते हैं हमारा। और ट्रेनिंग प्रोग्राम का हम वेलकम करते हैं। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर वो लगाते हैं चलाते हैं वो उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ट्रेनिंग प्रोग्राम करें हम लोग उसको अपडेट करने के लिए हमेशा एक्सेप्ट करेंगे। बट एग्जाम इज समथिंग लाइक इंसर्टिंग आवरसेल्फ। हिमांशु कुछ कह रहा है, हिमांशु। हाँ नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारी फील्ड से अलग है। जो बेसिक एजुकेशन है, जो प्राइमरी और 2 अप टू 8 क्लास होता है जिसमें टीचर्स पढ़ाते हैं, उसमें लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था कि टेट स्टेट गवर्नमेंट के लिए और सीटेट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेगा तो ही वो टीचर के पद पर रहेगा। लेकिन उसमें भी 55 प्लस के लिए उन्होंने वेरियर किया हुआ है। जो 55 प्लस के लोग हैं उसमें वो गवर्नमेंट की उसमें सरकारी नियुक्तियां होती हैं, तो वो जो 55 प्लस है उनके लिए वेरियर है। अदरवाइज कंपल्सरी VRS लेना होगा और प्रमोशन नहीं होगा। ये मैं मतलब इसलिए बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को देख रही है कि 55 प्लस को नहीं देना चाहिए एग्जामिनेशन, उनको उसी तरह से कंटिन्यू करना चाहिए। ये लगती है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। थैंक यू। आलोक कुछ कहना। आलोक ये सर मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो गवर्नमेंट को सजेशन देना चाहिए कि उन्हें अपडेट करते रहे हर वैल्यू को। ये तो एग्जाम से तो कुछ नहीं हुआ, मैं आज मैंने एग्जाम पास कर लिया, मैं बेकार हूँ, तो अपडेट करें वो। जैसे आप हम लोग कर रहे हैं ऐसी वो एक बनाने संस्था जिससे अपडेट करते रहे कि आपको क्या करना है। ये तो समझ नहीं आता, एग्जाम देके पास भी हुआ है और नहीं है काबिल, अपडेट देना चाहिए उन्हें, अपडेट करते रहे हर व्यक्ति को। ठीक है, बाकी आप लोग जाना सब। हाँ, दीपा पटनायक जी भुवनेश्वर से। जी दीपा पटनायक बोलिए, क्या कहना। दीपक ये हेलो। हाँ दीपक। सर मैं सोच रहा था कि ये जो हम लोग का पास कोई अपडेट नहीं आ पा रहा है, कुछ भी कोई भी चीज का। कौन चीज का? कोई भी देखिए जो वैल्यूम में रूल बनाया है ये सब जो आप ही भेज रहे हैं ना, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं आ रहा है हम लोग के पास। गवर्नमेंट किसको देगा बताओ? हम गवर्नमेंट को अप्लाई किया ऑफिशियली आंसू, तो गवर्नमेंट तो लिख के हमको देगा ना। देखिए जो आरबीओ वो लोग कैसे आरबीओ को जैसे कर रहे हैं, आरबीओ को तो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं ना वो लोग। तो आरबीओ को भी इम्पोर्टेंस कहाँ दे रहे हो जो आरबीओ हटी गई हमारे यहाँ से? नहीं सर, वो चीज वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अगर वो लोग अगर चाहेंगे, देखिए जैसे इंडिविजुअल जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हम लोग का जो मैकेनिकल इंजीनियर है, तो हम लोग का मैकेनिकल इंजीनियर में कोई भी अपडेट आता है तो तुरंत हम लोग के पास भेज देता है, ऑल इंडिया का जो है। तो आप क्या चाह रहे हो? तो हम कह रहे हैं सर कोई भी चीज अपडेट होने से पहले हम लोग के पास ही वो भी आना चाहिए सर। कौन भेजेगा? तो गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा ना सर। अच्छा ठीक है। मैं दास साहब, मैं लर्नेड मेंबर को थोड़ा सा इतना बोलना चाहता हूँ। बहुत देर से सुन रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से 70% इरेलीवेंट होते हैं। ऐसा लगता है कि बंदा काम करते उठ के आके यहाँ क्वेश्चन पूछने लगा। जो भी साहब पूछ रहे हैं वो गवर्नमेंट को डायरेक्ट RTI लगाएं, डायरेक्ट पूछें। एसोसिएशन के ऊपर क्यों डालना चाहते हो उसको, क्या अपडेट करें वो करें, खुद को अपडेट करो ना। मुझे बस सिर्फ इतना ही कहना है, अपने आप को अपडेट करो ना बस। किसी को भी दूसरे के ऊपर क्यों जिम्मेदारी डालना चाहते हो? डिपार्टमेंट को लिखो आप,
कैसे मना चाहिए आपको? चलो ठीक है। हम लोग तो अच्छा चलो, अच्छा छोड़िए, अभी एग्जाम वाली जो पॉइंट है उसमें क्या सजेशन है? हमें एग्जाम देना चाहिए, किस बेस पे हम सरकार को कहें भैया हम एग्जाम देना नहीं चाह रहे? अभी इस पे जैसे सर अभी एक सर ने बोला कि जो 55 के ऊपर है उनको एग्जाम देना नहीं चाहिए सर। देखिए, अब मैं एक छोटी बता दूं, एक आंसू से नाते वहाँ 55 ईयर्स ओल्ड भी बच्चे हैं, मतलब आदमी हैं, और 35 साल का बच्चे भी हैं। तो हम तो किसी से ना इंसल्ट कर नहीं सकते ना, तो इसलिए हम जो भी डिमांड रखेंगे हम तो रखेंगे हमारा 34 एबी का, किसी का एग्जाम देना पड़ेगा। आप समझ रहे चलो, घर का गार्डियन होके नाते ये तो नहीं कह सकते भैया 50 साल 55 साल 60 साल का नहीं देना पड़े। हम तो कहेंगे जो भी, क्योंकि ग्रैंडफादरिंग क्लॉज आपने एक्सेप्ट किया है, जो लोग अभी तक 34 एबी रेजिस्टर्ड हो चुके हैं वो कोई एग्जाम नहीं देगा। हमारा तो डिमांड ये रहेगा। बाकी सरकार क्या करेगा नहीं करेगा वो तो भी सरकार ऊपर है, लेकिन घर की गार्डियन होने नाते हम तो डिमांड करेंगे सभी बच्चे जो 34 एबी है किसी को एग्जाम देना ना पड़े। ये हमारा आंसू में स्टैंड रहेगा। देखिए, मैं एक चीज सबको एक चीज और बता देता हूँ, एक सजेशन नहीं है, जिस प्रोसेस में हम लोग काम करेंगे और काम करेंगे, प्रोसेस से हिट देना चाह रहा हूँ आपको। जिस प्रोसेस से हमको सक्सेस मिला है पिछले राउंड में, ऐसा है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, सबसे बड़ा गाइडिंग फैक्टर जो होता है वो होता है एक्ट। एक्ट सबसे बड़ा गाइडिंग फैक्टर होता है। 514 में क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से रूल बनेगा। ठीक है, किसकी बात है? तो सरकार ने जो चेंज किया वो हमारे लिए बहुत अच्छी काम किया, पर साथ में ये भी बात है सरकार अपने आप को करेक्ट किया। बिकॉज ये आप ध्यान होंगे जो 9 इंक्लूजर हमने जो जमा किए, सरकार को जमा किए थे पिछली बार 20 तारीख से पहले, 22 तारीख से पहले, फरवरी के पहले, उसका अंदर एक बेसिक जो चीज हमने डाले थे, एक बेसिक जो किया डाले थे, रिक्वेस्ट डाले थे, ये साहब आपने जो रूल लेके आया that is not in conformity with the Mother Act 514, neither with the conformity with the suggestions or the recommendation of the select committee। एक बात है, accordingly उन्होंने हमको ऑब्लाइज किए, रिक्वेस्ट रखे उन्होंने, प्लस उन्होंने अपने आप को करेक्ट किए, तो वेरी क्लियर। Now except the examination clause, everything is in line with the Mother Act। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो एग्जामिनेशन क्लॉज जो उन्होंने डाला, आई रिपीट, 247 ऐसे 246 सेक्शन 7 जो डाला, दैट इज नॉट इन कन्फर्मिटी विद 514। और यही हम सरकार को समझाने की कोशिश कर रहा है। अलॉन्ग विद दैट कि हम नहीं कर सकते, जो भी सारी बातें हैं कि 50 साल उम्र में कैसे करेंगे, वो सारी बातें हैं। साथ में ये भी जो टेक्नोलॉजिकल जो इश्यूज है कि अभी भी ये वाला जो एग्जामिनेशन जो क्लॉज है उन्होंने अचानक फ्रॉम नोवेयर उन्होंने लेके आ गया, आसमान से कहीं से लेके आ गया, इस क्लॉज को इसमें डाल दिए। ये हमारी मदर एक्ट जो है उसके साथ मैच नहीं करते। इसका बहुत ज्यादा डिटेल में आपको बता नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत टेक्निकल डिटेल से हमने होमवर्क कर रहे हैं। तो बी एश्योर रहिए, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ सरकार भी इस चीज को करेक्टिव मोड में लेंगे और हमारी सबकी रिक्वेस्ट मानेंगे। बी एश्योर, बहुत जल्दी आपको अच्छे लोग मिल सकते। थैंक यू। हाँ दीपक, कुछ कहना? मेरा एक सजेशन था कि अभी तो कोशिश यही की जाए कि एग्जाम ना हो और सब लोग एग्जाम हो जाए, पहली तो प्रायोरिटी यही रहनी चाहिए। आवाज आ रही है ना मेरी? आ रही। लेकिन अगर मान लीजिए वो लोग कह रहे हैं कि नहीं एग्जाम तो देना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा, इस तरह की बात आ रही है, तो उसमें कुछ एक्सपीरियंस के पॉइंट वो लोग वो करें। जैसे सपोज कीजिए कि 5 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको 20% नंबर मिल जाए, 10 साल का तो 40%, इस तरह से करके तो जो उनका क्राइटेरिया होगा, जो भी 50% ये होगा, तो मान लीजिए एग्जाम में तो देना भी पड़े तो हल्का फुल्का रहे मामला, ये लोग निकाल ले जाए अपना, या वो एग्जाम हो जाए, मान लीजिए 50% एक्सपीरियंस से ही 60% आ जा रहा है तो क्राइटेरिया में वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो इससे क्या है कि नए पुराने सबको कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। लेकिन ये जब की बात है जब एकदम सरकार पीछे पड़ जाएगी एग्जाम देना है तब। ठीक है, थैंक यू। मेरा ये सजेशन था। दीपक, उसको कहना हो दीपक।
हाँ दीपक भैया बोलो। सर नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ सर। हाँ थोड़ा मैं थोड़ा कुछ वो अलग से कुछ लिख रहा हूँ सर, उसी के चक्कर में। अच्छा, तो लेके भेजोगे? हाँ सर। अच्छा चलो भेजो। नहीं हम तो चाहेंगे 2-3 दिन जो आप मीटिंग हुई उसके भी निष्कर्ष जो जो सजेशन मांगी गई वो आप लिटिन लिख दे दो, तो हम तो टीम को काम करने अच्छा होगा। एक्चुअली ना ये ड्राफ्ट बनाना ये करना इतना आसान काम नहीं है। हम तो आनंद से कहते भैया शाम को 5 हमको दे देना, वो कहेगा 5 तो कैसे हो सकती है, हम तो कल देंगे। तो ऐसा चलती रहती है टीम वर्क में। तो इसलिए अगर आप लोगों को फीडबैक मिल जाएगी तो फिर सुगाता को भी आनंद को भी आसान हो जाए थोड़ी काम करने के लिए, और कुछ नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम हम सबकी है तो सबका थोड़ी सहयोग होना चाहिए। ये दो लोग क्योंकि थोड़ी दिमाग तेज है, थोड़ी ज्ञानी लोग हैं, इसलिए उसको थोड़ी सी रिप्रेजेंट करते हैं अच्छी तरह से। तो अगर आप लोग सुझाव मिल जाए तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो सबसे उम्मीद करते हैं 2-3 दिन अगर दे दें अपना सुझाव तो हम आगे के लिए भी तैयार हो जाएंगे। सर थैंक यू। और किसी को कुछ कहना? सर ये पूरा सर वो जो रिप्लाई आया है सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जो मैंने शेयर किया था इसमें साहब, उसमें सर जो हम लोगों ने जो लेटर लिख के दिया था उसमें मेरे को तो सर पॉजिटिव आउटकम ही लग रहा है सर जो आया है। उसमें HUL का और जो अदर कंपनी को जो वेलवर जो स्टेशन करने में जो मना किया सर अपन क्लास 514 में। सुगता जी बताइए। आनंद सुगाता सर नहीं है क्या? सुगाता जी है तो मैं तो बोल रहा हूँ संदीप सुगाता थक गया होगा सॉरी सर बहुत प्रदान करिए, सॉरी सर। नो इशू, आप ऐसे इसी काम के लिए कभी थकान नहीं होता है। मेरे क्योंकि सबकी बड़ी बात है संदीप, ऐसा है पहली बात तो आपके पास 3 चीज का जवाब आया, ठीक है सर? वो लाइट जलाइए सर, लाइट जलाइए लाइट। मेरे को लगता है बहुत ज्यादा रिलेवेंट है नहीं अभी, बिकॉज उन्होंने वही चीज इंटरप्रिटेशन किया जो भी अभी रूल में है। तो पहला इंटरप्रिटेशन उन्होंने जो किया है, आपने जो कागज दिया है उसकी बेस में बता रहा हूँ, आपके सामने जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। और आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप इसको यही खत्म करेंगे, फिर आगे और भी लोगों को, क्योंकि मोहनक सर भी आगे चल के है और आपको बताता हूँ, आपको डाउट पूरा कर रहा हूँ। और प्लीज आप ग्रुप पे ऐसा मत लिखिए क्योंकि बहुत डाउट क्रिएट होता है। आपको 3 चीज की आपका जवाब दिया गया, तो इसके अंदर सबसे अच्छी बात के 3 नंबर से शुरू करता हूँ। आपके पास जो जवाब आया, आप बहुत खुश होइए उसमें, देखिएगा 3 जो जवाब आपके पास आया वो नेगेटिव या पॉजिटिव जवाब आपके पास जो आया। पहली बात तो 3 नंबर बात करता हूँ। 3 नंबर बात उन्होंने स्वीकार किया 169 में ड्राफ्टिंग करेक्शन चाहिए, उसको चल रहा था जो कि हमने क्लेम किया था। ड्राफ्टिंग करेक्शन होगा जो कि शुरुआत में मैं कह रहा था 169 में ड्राफ्टिंग करेक्शन। एंड सेकेंड में आता हूँ, उससे एक और अच्छा जो न्यूज उन्होंने दिया हमको वो ये है, हमने जो हमारी रिप्रेजेंटेशन अभी जो जा रहा है 23 तारीख के बाद से जो जा रहा है, उस पर हमने बोले थे ये साहब ऐसा है, ये रिक्वेस्ट की थी सरकार को, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका फॉर्म ऑफ देखकर लग रहे थे कि इंडिविजुअल के अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बड़ी कॉर्पोरेट एक्सेट्रा 514 में अप्लाई कर सकते। मतलब उन्होंने इस बात को साफ कर दिया, they are interested to maintain the individual character of the professional practice under section 514, जैसे सेक्शन 34 में था या है। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि सब ऐसा है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट या एलएलपी को हम इंटरटेन नहीं करेंगे। तो दैट इज द सेकंड आंसर, जिसमें कि हमारा एक रिक्वेस्ट ये भी था हमारे डिस्ट्रिक्ट। फर्स्ट वन जो है जिसमें एग्जाम की बात किया, उन्होंने वही बात कहा जो कि इसमें रूल में लिखा हुआ है। ये सब ऐसा है कि ये कैपेसिटी एनहांसमेंट के लिए है और कंटीन्यूअस प्रोसेस है ये, जिसके लिए अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बेसिकली बात है। तो आप मान के चलिए आपका अगर चीज 100 मार्क्स की बात करें तो आप 66 ऑलरेडी मिल गया आपको, अभी 33 मार्क्स बाकी है जिसके हम कर रहे हैं। सर एक और रिक्वेस्ट है सर आपसे, प्लीज सुगाता सर को ऐड कर लीजिएगा सर मेरे ग्रुप में सर। इस बार में यहाँ नहीं, इनको पनिशमेंट एक दिन का पड़ा है सुगाता जी, इनको एक दिन का पनिशमेंट और दो।
मोइनक सर, मोइनक घोषल सर, मोइनक घोषल सर, आपने हैंड रेज किया, प्लीज बताइए। मोइनक जी, चलो और कोई उनको छोड़ दो, बाद जो आएगा तो देखेंगे। मोइनक बोलो भैया। हाँ वो जो एग्जाम का बात हो रहा था, वो अभी नया गैजेट आएगा क्या? तो हमारा तो अभी कॉन्टेम्पलेटिंग है स्पेकुलेशन की क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा। तो फर्स्ट अप्रैल चला गया, अभी तो क्या अमेंडमेंट आएगा शायद, है ना? ऐसे करके कुछ आएगा, है ना? हाँ ऐसा कुछ आएगा, जो आएगा तो देखेंगे, हम बता देंगे, हम उसमें लड़ रहे हैं। ठीक 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 ठीक, यही बोला था। और जो है रिप्लाई वो सबको देगा क्या डिपार्टमेंट? और जो लेटर भेजा है वो तो लेटर आप भेज चुके हैं, जो जाना था जा चुके हैं मेरे खिलाफ, और किसी को जरूरत और कोई भेजा, और मेरे सब लोग भेज चुके होंगे। तो ये दो ही था, बाद में आएगा तो हम हानि कर करेंगे। अरे हमारे साथ दो लोग और हैं जिन्होंने काफी मदद करी। एक तो दोनों एमपी से हमारा फेवर दिया कि कानपुर से 2 एमपी लेके दिए थे, उससे हमारा कानपुर टीम लगे थे, और सब बाराबंकी के श्रीवास्तव जी है और एमपी तिवारी जी है, दोनों लोग मेरे साथ मौजूद है। तो कम से कम वो भी बताया कि वो कैसे एमपी साहब से बताया क्या कुछ, तो क्योंकि वो भी हमारा जो सक्सेस का वो भी पार्ट है, क्योंकि कुछ एमपी ने यहाँ से लिख के दिया। तो इसलिए सत्यप्रकाश श्रीवास्तव जी, आप भी यहाँ पे ग्रुप में हो, थोड़ी सी आप भी बताओ कि आपने एमपी से मिला, कम से बातचीत होती रहती होगी, एक बार उनको थैंक भी दे दो। हम अपना ऑफिशियली आपको भी थैंक देंगे आप एमपी साहब के लिए, और जो लोग टीम में इतना मेहनत किए उनको थैंक दे, लेकिन जब हमको 100% रिजल्ट है तब मिलेगा, अभी उधारी भी है। तो सत्यप्रकाश श्रीवास्तव जी, आपको कुछ कहना बताइए। हम ये कहना चाह रहे थे सर कि जैसे हम लोग, आवाज आ रही है हमारी? आ रही। मैं कहना चाह रहा था कि जैसे हम लोग मिले थे और बड़ा अच्छा उनसे कोऑपरेशन मिला, उन्होंने नेक्स्ट डे लेटर भी लिख दिया, तो एक थैंक यू लेटर जैसे जो भी सांसद ने हम लोगों के लिए इतना लिखा, चिट्ठी लिखी सरकार के लिए, तो एक थैंक यू लेटर चला जाता उनके पास। भैया ऐसा ना, मैं वही शुरू से कह रहा हूँ, अभी हमारा भूख मिटा नहीं है, पूरा भूख जो मिट जाए तो थैंक देंगे, इसलिए आप उनसे मिलके थैंक यू कह दो। आप मेरे पास सुनो श्रीवास्तव जी, आप उनको मिलके में अगर आगे फिर कोई जरूरत पड़े, तो ये था कि जैसे एक बार मिलके वो थैंक यू लेटर दे देते, फिर आगे कोई जरूरत पड़ेगी इसी में। हाँ तो आपको मंडे को लेटर बना के दे देंगे, लेकिन आप मिलके उनको बताना साहब हमारा छोटी सी काम रह गया, थोड़ी सी आप पार्लियामेंट में मदद करो, क्योंकि आपका दोस्त है तो थोड़ी सी मदद कर देगा हमको जी। और एमपी तिवारी जी, अब हम लोग आपके उसमें जितना कर सकते थे, वो जो भी हम लोगों को काम मिला, ये तो बहुत छोटे छोटे काम थे जो हम लोगों ने किया। एसोसिएशन तो बहुत ज्यादा कर रहा है सबके लिए। हम लोग तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन अपना लग करके एक जो भी काम दिया गया उसको कर दिया हम लोगों ने, लेकिन एसोसिएशन का बहुत चीजें हैं कि जो इतना एक्चुअली इंडिविजुअल मेंबर के तौर पे आप लखनऊ का बाराबंकी टीम लेके उनके पास गए, तो उनसे भी वो हमको समर्थन मिला, वो भी पार्ट है। मतलब जीत जो है सबकी हिस्से का बराबर हिस्सा है, कोई थोड़ा ज्यादा काम करता है, कोई तो कम काम करता है, लेकिन काम सब लोग करते हैं। तो इसलिए आपको बहुत धन्यवाद, एक बार उनको मिल के थैंक दे देना, मंडे को आपको लेटर भेज देंगे, उनको लेके आप दे देना। लेकिन कहना साहब थोड़ी सी काम रह गया, अब थोड़ी सी आप उनको एक बार पार्लियामेंट में बातें कर लो अपना पार्टी से। मैं एमपी तिवारी साहब से कहूंगा कि वो उनको मैंने रात को बताया, उन्होंने सुबह जो है एमपी साहब से मिलकर चिट्ठी दिला दी। एमपी तिवारी जी, एमपी हाँ सर, आप ज्यादा मेहनत की, मतलब कम समय पे रात को मैंने फोन किया, सुबह आपने दे दिया, ये सबसे बड़ी काम है। नहीं, तो हमने फोन किया तो फील्ड में थे और मुलाकात हो गई, और संजोग से होली थी तो हम गुजिया बैठ कर खाया गया, और होली के बाद गया तो लेटर लिखा। हालांकि उन्होंने तुरंत कहा मुझसे कि हम लोग लगे ही, हमारा ऑब्जेक्शन पहले से भी इनकम टैक्स एक्ट अगेंस्ट में है, उसमें बहुत सारी कमियां और अमेंडमेंट हो रहे हैं, और ये भी अमेंडमेंट हम लोग कराने की कोशिश करेंगे, और तमाम ऑब्जेक्शंस हैं उसको गवर्नमेंट फॉलो करेगी।
तो आप जरा उनको मिलके बता दिए सर आपने बड़ी मेहनत करी, हमें जीत हासिल हुई, ये थोड़ी सी रह गई जीत, और तो थोड़ी सी आप मेहनत कर लो ताकि हम पूरा 100% जीत हो जाए। तो थोड़ी सी हमारी तरफ से करो, मतलब हमारा आपका सभी एक ही तय है, तो इसलिए ये देख लीजिए आप। ठीक ठीक। तो और रमेश अगस्ती से हमारा आनंद सिंह जी ना और एम के श्रीवास्तव मिले थे, तो मैं एम के श्रीवास्तव शायद कोई दिख नहीं रहा, आनंद जी से अनुरोध करूंगा वो दोनों एक बार जाके रमेश अगस्ती से मिलके उनको धन्यवाद दे दें और थोड़ी सी आगे के लिए हमको मदद करने के लिए और थोड़ी सी उनसे गुजारिश कर ले। आनंद प्लीज। ठीक है सर, ठीक है। अभी अच्छा। संसद का अधिवेशन चल रहा है, अब आ जाए तो उनको मिल करके फोन भी कर देंगे उनको। हाँ नहीं, उनका ना मेरे ख्याल में 2 तारीख को पार्लियामेंट सेशन खत्म हो गई होगी, तो आने वाले होंगे सब लोग जो आएंगे, नहीं तो ये फोन कर देना आप, एक काम करो जब फोन करके तो उनसे बात कर लो, फिर हमसे मिल लेंगे क्योंकि आपका दोस्त है। नहीं ठीक, उनको फोन करके मिलते हैं, उनको मिठाई भी खिलाते हैं और आगे के लिए प्रार्थना भी करते हैं। जी जी। अच्छा, देवेंद्र सिंह भोले के पास हम लोग तो काफी लोग गए थे और मैं भी गया था साथ में, तो और हमारे साथ जाने वाले कोई अभी दिख नहीं रहे मेरे ख्याल में, तो मैं देवेंद्र सिंह भोले से भी कह दूंगा थोड़ी सी हमारे लिए मदद करेंगे। एक्चुअली देवेंद्र सिंह भोले से मेरा डायरेक्ट परिचय नहीं है, लेकिन उनका भतीजा जो है मेरा दोस्त है, तो हम भतीजा मार्फत गए थे, तो मैंने उसको भतीजा को बोल दूंगा, तो वो थोड़ी सी हमको आगे मदद कर देंगे। और मैनाक भी गए थे हमारा, उन्होंने भी शायद एमपी से लेके आया था, तो मैनाक जी से कहूँगा वो भी थोड़ी सी अपने एमपी से मिल के बताए, जो जो लोग एमपी से मिल के आए थे सबसे धन्यवाद भी दे दे और कह दे थोड़ी सी हमें आगे, क्योंकि हमारा लंबी लड़ाई चलनी होगी इन फ्यूचर भी, तो इसलिए सभी एमपी से अगर हम दोस्ती बना लें तो भी काम हो जाएगी। नहीं सही सजेशन है सर, बहुत अच्छा है, मतलब किया जाएगा। मैनाक जी, मैनाक भैया आवाज आ रही है? हाँ ये आप जो है अपना एमपी साहब से देखो बोल देना कि भैया थोड़ी सी और मदद कर दे। जगन्नाथ सरकार, ठीक है मैं बोलूँ। ठीक है। और अपने टीएमसी का उस पर मैं नहीं गया है, जगन्नाथ सरकार बीजेपी के एमपी उसके बाद गया है। हाँ, और भी जो लोग, क्योंकि और भी कुछ लोग ग्रुप में आई थी, तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा, सबको धन्यवाद दूंगा कि काम के लिए, सक्सेस के लिए, तो मैं चाहूंगा वो भी अपने अपने एमपी से मिलकर अभी भी संपर्क बना रहे ताकि आगे भी हमारा काम में आएंगे। और किसी को कुछ कहना हो? मेरे ख्याल में अगर कुछ और नहीं कहा तो हम यहीं पे अपना मीटिंग खत्म करते हैं। तो लेकिन मीटिंग खत्म करने पहले आसुन तरफ से थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन है, कोई भी आदमी किसी को, पहली बात हम कोर्ट नहीं जा रहे, कोर्ट जाने का हमारा रिजर्व है, मतलब कि हम अगर जरूरत पड़ेगी, हमारा 3 मेंबर टीम बनी हुई है, उनको ऑथराइज कर दी गई, जब वो चाहेंगे हमें काउंसिल को परमिशन लिए बिना वो जा सकते हैं, सिर्फ वो प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि हम इस पॉइंट पे कोर्ट जाना चाह रहे हैं। लेकिन अभी हमें कोर्ट जाने का ना कोई सोच है ना कोई प्लानिंग है, मतलब प्लानिंग तो है फ्यूचर के लिए, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है। तो कुछ ग्रुप में पैसा मांगी जा रही है, जैसे खबर मिली है, हमें 1 पैसा किसी को नहीं देनी, कोई मेंबर हमारा 1 पैसा किसी को नहीं देगा। अगर कोई जरूरत पड़ेगी आशु सर अपना ऑफिशियली सबको मेल करेगा कि हमें ये जब पे हम पैसा चाहिए, नहीं तो हमें कोई भी पैसा किसी को नहीं देनी, 101% गारंटी लीजिए। दूसरी बात है, कोई भी ग्रुप में हम ऐसा न डालें, देखिए हमारे साथ बहुत सारे लोग, अभी तो 2-4 लोग अब देखा है, बहुत सारे लोग ऐसा है जो पर्दे के पीछे भी है, तो वो सामने आना भी नहीं चाहते, बताओ इस ईमानदार से बताओ, सामने आना नहीं चाहते हैं, नहीं तो उनका भी हमको बहुत सपोर्ट रहा, तो उनको भी हम कहेंगे कि ग्रुप में ऐसा कुछ न डाले कि उनका थोड़ी फीलिंग हट हो। अभी तो 2 लोगों को देख रहे हैं, लेकिन पर्दा पीछे बहुत सारे लोग जो हमारा पूरा टीम है जो मदद कर रहे हैं, तो किसी का मन में इतना काम करने बाद अगर मान लो हम नहीं कह रहा, मैं अंदर से कह रहा हूँ, वो दिन सुगाता जी 12 साल सोने जा रहा था, मैंने फोन कर बताया हमारा पानीग्राही जी का जो है वो नहीं हो पाता, मैंने कहा भैया इसको डालो, वो धोखे से गलत नंबर लग गया, वो उनको गाली दे रहा, वो मेरे को नहीं लगा था तो 4 को मैंने 6 बता दिया, वो उनको गाली दे रहा था। तो ऐसा कभी कभी होता है, इतना तकलीफ झेलने के बाद भी अगर हमें तो थैंक्स नहीं चाहिए, लेकिन हमें बुराई नहीं चाहिए। तो अगर कुछ हो रहा है, कौन सा ग्रुप में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमें मतलब नहीं, हमें अपना मेंबर के लिए काम करना है, ईमानदारी से काम करना है, सभी हमारे परिवार का आदमी है। अगर हम कुछ करेंगे, ये कभी ना सोचो कि जो लीड कर रहा है वो सभी अपने अपने काम कर लेंगे, भाई छूट जाए, कोई नहीं, जब सब लोग काम होगा तब हम लोग काम करेंगे। एक छोटी सी बात पे हम विश्वास जी का और क्या नाम अरुण का, एक छोटी सी बात पे मैं बताऊं, मैं ईमानदार से बता रहा हूँ, आज की तारीख में मैं बड़ी पुराना कस्टमर, हमारा कानरा बैंक है, मैं कानरा बैंक छोड़ दिया, बाकी सब लोगों ने साइन भर दिया, मैं नहीं किया कि उनका कहना साहब प्रेसिडेंट हो और करोगे थोड़ी गलत हो जाएगी। हमने पूरा कानरा बैंक जिसके मैं 8 साल से जुड़ा था, मैं उनको छोड़ दिया,
क्योंकि कुछ पॉइंट इनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि प्रेसिडेंट हूँ। तो इसलिए जब हम अपने कैरियर को दांव पे लगा काम कर सकते हैं तो कुछ हमको चाहिए ना, हमको थैंक्स नहीं चाहिए, लेकिन कोई नेगेटिविटी ना हो, क्योंकि एक बार ग्रुप में नेगेटिविटी आ जाएगा तो पॉजिटिव करने में उसको समय लगती है। दूसरी बात है, अगर आपको कहीं भी कुछ भी अगर सजेशन हो आप मेल कर दीजिएगा, वो मेल आनंद को सुजाता को फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि ये दोनों लीगल के मास्टर है, अरुण भी है, उपाध्याय भी है, लेकिन उपाध्याय 2 दिन अभी है नहीं, तो इनको सब मेल कर दें, पूरा टीम को मेल कर देते हैं कि जो सब समझना है। मैं अपने में रखता हूँ नहीं, क्योंकि मेरा का लीगल ज्ञान है ही नहीं। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चित रहो, बेफिक्र रहो, जो आसन कर रहा है सबकी ईमानदारी सभी काम कर रहा है, सभी के भलाई काम कर रहा है। तो इसलिए इसी के साथ आज हमारा जॉइंट सेक्रेटरी पता नहीं है, फोन नहीं उठा रहा, तो इसी के साथ मैं ही वोट ऑफ थैंक दे रहा हूँ। आप लोग सब लोग आए, और चाजू की बात, आज जो है हमारे पास 76 मेंबर हैं। अभी एक ने आखिर में जुड़ा, जो नाम बताया, नाम नोट कर भूल गया, सविता जी कोई है ज्वाइन किए, तो टोटल हाँ जो हम 76 मेंबर है, जो ये रिकॉर्ड भी है। लेकिन इसका पहले हम लोग जो मीटिंग की थी पिछले महीने, साउथ इंडियन के लोग थे सभी, मतलब बाहर हमारे नॉन मेंबर्स थे, तो 95 मेंबर थे, तो हम उसके पीछे है, फिर भी हम लोग आगे से बहुत अच्छा स्ट्रेंथ में है। तो महीने में एक उम्मीद हम करते हैं कि सभी मेंबर हमसे जुड़े। अभी आनंद हमको एक दिन परसों फोन किया था, भैया आप कितना घंटे काम करते हो आसून के लिए? मैंने कहा 4 घंटे पर डे करता हूँ। बोला आपका जितना चेयरमैन सेक्रेटरी है, कम से हफ्ते में 4 घंटे काम करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं चेयरमैन सेक्रेटरी बोल दूंगा। क्यों आनंद, यही तो बता रहे थे ना, तो खुद बोलो सब चेयरमैन सेक्रेटरी हो। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं हफ्ते में 3-4 घंटे सब लोग आसून समय दें, कम से कम महीने में हर शनिवार सेकंड सैटरडे को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। उसमें क्या होगी ना, हमारा मनोबल बढ़ेगा कि हमने एक प्रोग्राम सेटअप करी, उसमें इतना लोग हमारे साथ सपोर्ट मिल रहा, ये चीजें हैं। तो इसी के साथ मतलब हम आप लोग सबको धन्यवाद देता हूं। अगर जरूरत पड़ेगी कभी भी, हम वेबिनार करने पीछे नहीं है, क्योंकि आपका सब राय के हिसाब से हम आगे काम चलते हैं। क्योंकि जो टीम वर्क होता है ना, कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपस में डिस्प्यूट होता है, जो जहाँ पे घर में 2 बर्तन होती ना तो लड़ जाते तो आवाज होती है। तो इसलिए जब टीम में 5-6-7 लोग होते हैं तो कहीं ना कहीं आवाज होती रहती है, तो उसको शांत करना ये प्रेसिडेंट का जिम्मेदारी, जो हमारा जिम्मेदारी से निभा रहा हो। लेकिन हमारा लीगल टीम बहुत मेहनती है और बहुत दिमागी तेज है, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छा काम किया। बाकी हम लोग तो मदद सब लोग किए, लेकिन वो उनका जो टेक्निकल नॉलेज है, मतलब लीगल नॉलेज है, वो बड़ी बेहतरीन था, बहुत बेहतरीन सरकार को रिप्रेजेंट किया, इसलिए हम लोग आगे सक्सेस हुए। तो इस आप सबको लीगल टीम के साथ साथ आप सबको बड़े धन्यवाद देता हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आगे जब भी हम जरूरत पड़ेगी हम वेबिनार करेंगे। ग्रुप में इधर तो बातें नहीं करेंगे, हम किसी का नहीं सुनेंगे, कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, हमें क्या करना, हमें देखना हमें क्या करना। तो इसलिए हम बाहर बात नहीं दे बताइए हमें क्या करना, आंसू बलम के लिए हमें क्या करना, कौन एसोसिएशन कौन इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा नहीं कर रहा। अभी कल फोन आया था कि साहब वो 2 लोग जाके वहाँ सीबीटी में लाइन लगा रहे, ये कर रहे, अरे कर रहे थे उनको, हमारे तो नजर रखे हुए हैं। देखो 2 साल पहले हमारे एक दोस्त है, उन्होंने हमको इशारा किया था कि सर आपका सीबीटी में कुछ बातें चल रही है, लेकिन तभी इसको हम गौर से किया नहीं था, अब तक ध्यान नहीं था कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब मैं बताऊं आपको, मेरा दोस्त है बहुत अच्छा सीनियर पोस्ट में, उसी में गाली खा के आया, बोला मैं इतना बड़ा पोस्ट होना है तुमने हमको अभी तक बताया नहीं। ये हमारा सुगाता को आनंद को उपाध्याय को पता है, लेकिन ये है अभी हम लोग इतना ध्यान से उधर नजर नहीं मारी थी कि ये सब हो सकती है। लेकिन जो हम झटका खा गए हम लोग, तो आगे हम लोग को जो है ना 4 आँख खुल गया, तो 4 आँख में हम सब लोग देखें कि कहाँ पे क्या हो रहा है। देखे अपना ग्रुप पे न डाल के आप सीधे मेल करिए, मेल पे हम सीधा फॉरवर्ड कर देंगे, आपका पूरा जो भी सजेशन होगा पूरा हम लोग टेकअप करेंगे। इसी साथ आप सबको धन्यवाद सहयोग के लिए, आगे के लिए हम उम्मीद करते हैं आपको सहयोग मिलता रहेगा। हेलो, थैंक यू बाबा साहब जी, थैंक यू वेरी मच सर। इसको वीकली कर रही मीटिंग, तो उधर तो कोई सोल्यूशन ना हो। क्या कहना, इस मीटिंग को आप वीकली कर दीजिए जब तक कोई सोल्यूशन ना हो। मंथली मत कीजिए इसको, हर सैटरडे को इसको मीटिंग को कीजिए until unless we get some solution। नहीं देखिए, एक्चुअली कोई जरूरत नहीं समझना, जब जरूरत पड़ेगी तो मीटिंग कल करी जाएगी। As you wish sir, जैसा आपको वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली जो आपको ठीक लगे, बट until unless this solution this matter is addressed, please make it continue। नहीं, ये तो मंथली मीटिंग तो चलती रहेगी, ये तो चलती रहेगी। हम कोई टॉपिक के बजाय यही डिस्कशन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। राइट, एक्चुअली बताओ, हम देखो, मैं मेरे को भी दुख लगा, मैं दिल्ली के लोगों से मिल नहीं पाया, मैं खाली ओपी वर्मा से मिला और सचिन बरा आए थे हमको, लेकिन यहाँ क्योंकि हमारा मिशन ऐसा सीक्रेट था, मैं कहाँ गया क्या गया किसी को नहीं पता, तो इसलिए मैं मिलने का बड़ी तरस रहा था, लेकिन मजबूरी थी, हम सबसे अवॉइड करते हो। फिर 3 दिन रहते भी हम आप लोग मिल नहीं पाए, क्योंकि थोड़ी सी प्लानिंग ऐसा तो थी कि किसी को नहीं पता हम कहाँ थे कहाँ नहीं थे। तो ये हमारा कमेटी का ही प्लानिंग थी ये सभी। तो हम जो आगे के लिए भी कोई भी टॉपिक न रखते हुए
इसी टॉपिक में यही सेशन डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर सजेशन। ऑलवेज ओके, थैंक यू, गुड नाइट।